Myself, RP Bhardwaj, convener of Trinagar Keshopuram CP Study Circle, welcome all the participants to today's seminar. Friends, today we are going to discuss a very important topic on GST, how to handle GST notices. Our guest speaker for today's discussion is CS KK Agarwal ji. I welcome the speaker in our seminar. He has already joined the seminar. Before proceeding further, I will briefly discuss the profile of our learned speaker. CS Kaushal Kumar Agarwal is a highly experienced practicing company secretary and GST consultant, trainer, speaker, and author. 2 decades of industry experience. His comprehensive knowledge base and skill set enables him to work as tax consultant on various tax matters, tax strategy formulation, tax implementation, tax audit, and tax advisory services. He also has extensive expertise in handling GST notices and appeals. He is a highly sought after speaker and trainer. He has conducted seminars amongst chartered accountants and lawyers in numerous places, and he extends his heartfelt gratitude to all those who invited him for deliberation, and for the positive feedback from the participants for his practical and interactive presentational style. He is a renowned author with numerous works on taxation under his belt. Working with Puneet Agarwal, he co-authored the book Sabka Vishwas, published by Taxman. To broaden and share his expertise with GST professionals, he has launched a website, masterlearnings.com, where anyone can find all the vital information about GST. He has also created his YouTube channel, Tax by KK, to help GST practitioners to further hone their GST knowledge. He cordially invites all GST practitioners to join him for an informative and comprehensive exploration of GST, in discovering the intricacies of the GST structure and learn very minute details of GST. I invite CS KK Agarwal ji to start his deliberation on how to handle GST notices. Over to KK Agarwal, sir. Thank you, sir. Thank you, R.K. Gupta ji. Thank you, Bhardwaj ji, R.P. Bhardwaj ji, for inviting me here to Trinagar Study Circle. तो गुप्ता जी से जब मैं पहली बार मिला तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस बाय हिज पर्सनालिटी. तो काफ़ी हेल्प और बहुत अच्छा लगता है जब भी उनसे फेस टू फेस मिलते हैं. तो थैंक यू गुप्ता जी. और अब मुझे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होगा. मुझे अच्छा उतना ही लगेगा जितना गुप्ता जी के साथ लगा था. मैं शुरुआत करने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि हम लोग जो सेशन लेते हैं उसमें इंटरेक्टिव सेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि हम लोग सवाल बहुत पूछते हैं. तो आप लोग बस उस सवाल का जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में दीजिए, जो आता है वो दीजिए. सही गलत तो क्योंकि जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे इंटरप्रेट करता है. लेकिन ये जो जीएसटी नोटिसेस जो हैंडल करने का जो हम लोग अभी सेमिनार करने वाले हैं, ये वो कुछ नोटिसेस मैं दिखलाऊंगा जो एक्चुअली जो मैंने हैंडल किए हैं. तो बहुत सारे में से कुछ नोटिसेस मैंने हैंडल किए. जो नोटिस एक्चुअली मेरे पास आया है उसी का मैं वो नोटिस दिखलाऊंगा और उसी का मैं आपसे जो मैंने रिप्लाई किया था वो मैं रिप्लाई भी आपको दिखलाऊंगा. तो हमारी इसी श्रृंखला में एक किताब निकाली है हमने, हैंडलिंग जीएसटी नोटिसेस. ये वाली किताब जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसमें ये सारे चैप्टर्स हैं. अब इसका मैं आपको ये दिखला देता हूँ. तो हमने क्या किया है सर, बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही है, अगर वो म्यूट हो जाए तो. All the participants are requested to kindly mute yourself. हाँ, अगर अनम्यूट भी करते तो वो बैकग्राउंड में कुछ आवाज ना आए, बस वो ध्यान रखिएगा आप लोग, ताकि काफी अच्छा ठीक रहे. हाँ, और हमारा सेशन क्योंकि बहुत इंटरेक्टिव रहता है तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप लोग सब कंसंट्रेट होकर यहीं सुने. इधर उधर जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है. आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मैं आप लोग को देख पाऊँ और आप कंसंट्रेटेड वे में सुन पाए. तो ये सारे चैप्टर्स हैं
जहां पर नोटिसेस के चैप्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, डिमांड एंड रिकवरी, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, एडवांस रूलिंग, अपील एंड रिवीजन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एंटी प्रॉफिटिंग, मिसलेनियस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांजिशनल प्रोविजन एंड जीएसटी नोटिसेस। और ये जीएसटी नोटिसेस में हमने जो जीएसटी नोटिसेस इसमें डाले हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सीजीएसटी एक्ट 2017 का एक पूरा चैप्टर, सेक्शन, उससे रिलेटेड रूल्स, उससे रिलेटेड फॉर्म्स, ये हमने किया हुआ है। इसके बाद सीजीएसटी रूल्स में अगर आप देखेंगे तो रूल्स, उससे रिलेटेड रिलेवेंट सेक्शंस, उससे रिलेटेड रिलेवेंट फॉर्म्स। फिर हमने क्या किया, दोनों एक्ट और रूल्स को लिंक कर दिया। जैसे टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इससे रिलेटेड कोई अगर रूल है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो चैप्टर 4 और चैप्टर 4। वैसे ही पेमेंट ऑफ टैक्स, ये एक्ट से रिलेटेड, ये रूल से रिलेटेड। इसमें वॉल्यूम 1 लिखा हुआ, तो क्योंकि 3 वॉल्यूम में बुक है, जीएसटी लॉ वॉल्यूम 1, जीएसटी नोटिसेस वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में रिफंड एंड आईजीएसटी है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक जिस्ट बना दिया, इंडेक्स बना दिया कि अगर आपको अपीलेट अथॉरिटी का डेफिनेशन ढूंढना है तो कहाँ मिलेगा, उस तरह से। ये सारे सेक्शंस के रूल्स के सारा जो इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हमने जो इंडेक्स ऑफ कवरेज ऑफ अलाइड लॉ, सर्कुलर सारे हमने डिस्कस किए हुए, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस, या और इसमें इस बुक में एक्सट्रैक्ट ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स भी हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो अगर इफ देयर इज एनी नोटिफिकेशन विच इज वायलेटिव ऑफ एनी आर्टिकल, तो वो रिलेवेंट आर्टिकल हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया हुआ है। इसके बाद फॉर्म्स एंड रूल्स, हम ये इसलिए भी डाला, मान लीजिए आपके पास एसएमटी 10 का नोटिस आता है, तो आप एसएमटी 10 का नोटिस यहाँ देखेंगे, रूल 99(1) में जाएंगे, उससे 11 सेक्शन देखेंगे, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जितने नोटिसेस हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ, वो नोटिसेस का जो लिस्ट हमने यहाँ पर डाला हुआ है। वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट मेड थ्रू DRC 03, वेरिफिकेशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, एसएमटी 10 के कुछ नोटिसेस, DRC 01A, REG 03 के, फिर DRC 01A के नोटिस, 1 के ऑडिट नोटिस और ऑडिट मेमो, REG 31 शो कॉज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर देयर इज अ डिफरेंस इन 1 वर्सेस 3B एंड कॉपी ऑफ परफेक्ट समन इशू। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये वाला जो पहला नोटिस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरह का नोटिस मिला और किस तरह का हम लोग को जवाब लिखना है। पेज 183, एक मिनट, कुछ कर 183 पेज में है, तो 183 पहले निकालता हूं मैं। ये जीएसटी नोटिसेस के कुछ हमने लिखे हैं, मैं आपको, ये एक नोटिस हमारे पास आया था, जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट। ये मैं इसका ना थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, आप बताइएगा इसका जवाब क्या होना चाहिए। जूम आउट कैसे होगा? आपको नोटिस नजर आ रहा है? आ रहा है सर। हाँ, प्लीज बताइए, आप लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। इसका क्या जवाब होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनरल नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट, प्लेस, रेफरेंस नंबर, दिन दिया हुआ है, रेफरेंस डेट दिया हुआ है, मैटर अर्जेंट टू मिसेस प्लेस जीएसटी, जो वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट्स मेड बाय यू थ्रू वेरियस जीएसटी DRC 03। Dear sirs, please refer to the above mentioned subject. In this regard, you are requested to submit the details supporting documents for which the payments has been made by you under the following DRC 03 challan within a week.
सीरियल नंबर, सीआरएन डेट, कॉज ऑफ पेमेंट, अमाउंट, योर सिस्टरी साइंड है, इसमें नेम मिसिंग है, डेजिग्नेशन है सुपरिटेंडेंट सीजीएसटी। क्या जवाब लिखेंगे बताइए? अपोमेंशन सब्जेक्ट, हाँ, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। supporting documents for which the payments has been made. Annual return, voluntary. आप लोग म्यूट करके प्लीज जवाब दीजिए। अगर मैं वन वे कर दूंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। Mm-hmm. प्लीज बोलिए। सर एनुअल रिटर्न के नोट पहले 3 तो पेमेंट एनुअल रिटर्न की है। करेक्ट। एनुअल रिटर्न फाइल करते हुए कहीं कोई लायबिलिटी निकली है हमारी तो उसका कोई सीट हाँ। बना के देंगे कि भाई ये लाइक दिस इतना हमने जमा किया था, इतनी हमारी लायबिलिटी बनती थी, बैलेंस अभी DRC 03 के थ्रू हम ये जमा कर रहे हैं। ओके, और कोई? प्लीज जो कैमरा में नजर आ रहे हैं प्लीज वो तो बोल दें। अच्छा देखिए, इस सबसे पहले मुझे बताइए, इसमें ये नोटिस जो इशू किया गया है जिसमें इस ऑफिसर का नाम नहीं है, इज इट अ वैलिड नोटिस? लेट अस क्वेश्चन द नोटिस इटसेल्फ। हाँ, टेक्निकल मेरिट नहीं देखेंगे हम लोग। मेरे पूरे हैंडलिंग जीएसटी नोटिस में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द मेरिट्स ऑफ द केस कि मैंने क्यों पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, हम लोग उसकी बात ही नहीं करेंगे। विल जस्ट डिस्कस कि ऑन टेक्निकल ग्राउंड एंड लॉ ग्राउंड इस पूरे नोटिस में गलती ढूंढना है आपको, बस सिर्फ गलती ढूंढना है। क्या गलती है? एक तो नाम नहीं है, और क्या गलती है? सिर्फ भारद्वाज जी बोल रहे हैं और कोई नहीं बोलना चाह रहा, बताइए। सिग्नेचर भी होना चाहिए सर। सिग्नेचर है, साइन लिखा हुआ है तो सिग्नेचर है। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा देता हूँ। हम लोग के ये जो सेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप मुझे जवाब देंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ भी अगर, क्योंकि ये सेशन इंटरेक्टिव करना ही है मुझे, प्लीज। रेंज वगैरह मेंशन नहीं है, कहां से आया ये? वो ये जो सेक्शन भी नहीं है सर। यस यस, इसमें सेक्शन नहीं है। किसने कहा एक बार फिर से? मैंने। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, एनके जी ने कहा इसमें सेक्शन मेंशन नहीं है। पता है सेक्शन मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या विदाउट सेक्शन मेंशनिंग विद issuing notice without section can it be termed as valid notice? Yes or no? Simple है, yes or no? No, why no? Because we cannot, the notice can be issued only by the proper officer. You can identify the proper officer only when relevant sections are mentioned. Yes or no? Yes. तो आपको पता ही नहीं है इसमें ये प्रॉपर ऑफिसर है भी या नहीं है, क्योंकि ओनली प्रॉपर ऑफिसर कैन इश्यू द नोटिस। तो जब तक हमें सेक्शन नहीं पता लगेगा तब तक हम लोग वो नोटिस का जवाब कैसे देंगे? आप इसके पास क्या पावर है ये भी आपको नहीं पता, बिकॉज ही हैज नॉट मेंशन द सेक्शन। और अगर इसके बेसिस पे अगर आप यू एक्टेड एंड प्रोवाइड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, देन दिस नोटिस ऑटोमेटिकली बिकम्स अ वैलिड नोटिस एज पर सेक्शन 162 सबसेक्शन 2। मैं आपको वो दिखलाना चाह रहा था, एक मिनट रुकिए। ये लॉ जो है 160 सबसेक्शन 2 का, वो आप देखिएगा जरूर। आप लोगों ने, कितने लोगों ने ये वाला लॉ पढ़ा है 160 सबसेक्शन 2? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम इंटरेक्टिव बनाए, लेकिन आप लोगों को साथ देना होगा। हमने कहा इफ यू एक्ट ऑन दिस नोटिस without questioning the notice, then that notice automatically becomes a valid notice। देखिए ये सेक्शन 160 सबसेक्शन 2
the service of any notice, order or communication shall not be called in question. जो भी नोटिस, ऑर्डर या कम्युनिकेशन आपको इशू किया गया है, उसको आप हायर अथॉरिटी में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर आपने इनिशियली उस नोटिस को क्वेश्चन नहीं किया। पूरा पैराग्राफ का मतलब ये निकलेगा, इफ द नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन as the case may be has already been acted upon by the person to whom it is issued, or where such service has not been called in question at or in earlier proceedings commenced, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication. Communication मतलब if any notice is issued without giving the section, then it automatically becomes a communication. ये क्लियर है मैं जो कह रहा हूं आपको? प्लीज म्यूट कर लीजिए बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज आ रही है। और अगर आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है, वाकई में सेशन का इनपुट और आउटपुट सही लेना चाहते हैं तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। तो 160 सबसेक्शन 2 गिव्स यू अ राइट टू क्वेश्चन द नोटिस, एंड इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज दैट राइट, then eventually at the higher authority you will not be able to question this notice. Therefore, please question the notice and check whether this notice is valid on every ground, on technical ground or merit ground. अब मैं वापस आता हूं नोटिस पे। ये नोटिस, अब बताइए क्या जवाब लिखेंगे? अब मैंने आपको बता तो दिया इस नोटिस में प्रॉब्लम क्या है, जवाब क्या लिखेंगे? प्लीज बताइए। आप लोग बोलते हैं तभी हमारी एनर्जी आती है, नहीं तो हमारी एनर्जी नहीं आती, मैं बोल ही नहीं पाता हूं फिर। मैं वहीं रुक जाता हूं। प्लीज नोटिस क्वेश्चन करने के बाद, हाँ, नोटिस का क्वेश्चनिंग करने के बाद जो भी फैक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है वरुण कुमार जी, तो लेकिन सबसे पहले तो आपको नोटिस को तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। वो जब सेक्शन मेंशन करके आपको नोटिस, वो तो फिर वैलिडेट कर देंगे नोटिस को, सेक्शन डाल देंगे उसमें, प्रॉपर नोटिस दे देंगे बाद में। हाँ बिल्कुल कर देंगे। यदि तो वो आप करवाएंगे या नहीं जवाब करवाएंगे? ना दें, हाँ नहीं जवाब दीजिए, जवाब ना दें। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि यू क्वेश्चन द नोटिस, ask the under which section this notice has been issued, is there anything wrong in that? Yes Ahuja ji, is anything wrong in that if you question the notice? देखिए हमने ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखा, द नेम ऑफ द ऑफिसर एंड द रिलेवेंट प्रोविजंस under which this notice issued is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. Will reply this notice on this technical ground. अब हमने रिप्लाई जो बनाया था वो मैं दिखला देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक ट्रेल छोड़ते हैं कि किसके बाद क्या हुआ, ताकि हम लोग अल्टीमेटली अगर बाई चांस ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है, हायर अथॉरिटी तक जाता है, तो हमें पता हो किसके बाद क्या क्या इवेंट हुआ है। दैट वी आर रिसीट ऑफ दिस जनरल नोटिस, और जनरल नोटिस इसलिए कह रहे हैं, द सेड नोटिस डू नॉट कंटेन अंडर विच प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट दिस नोटिस इज बीइंग इशूड फ्रॉम सुपरिटेंडेंट हैविंग रेफरेंस नंबर दिस, और ये सब उसका प्रोड्यूस कर दिया हमने। प्रेयर काइंडली लेट अस नो अंडर विच सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट दिस इंक्वायरी, और इंक्वायरी की स्पेलिंग अगर आप ध्यान देंगे तो हमने IN से शुरू नहीं किया, EN से शुरू किया। अगर मैं IN इंक्वायरी लिखता हूं तो इसका मतलब आई एम सेइंग दैट द इंक्वायरी इज बीइंग इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 67। तो ये 67 की कोई इंक्वायरी हुई नहीं थी, इसलिए हमने स्पेलिंग EN लिखा है। इंक्वायरी का मतलब एक जनरल इंक्वायरी, जनरल कम्युनिकेशन है। Via this notice has been issued so that detailed reply can be framed. In any case, please grant us an opportunity of being heard. इसका आउटकम क्या हुआ? The client did not cooperate, and after few days he met the officer with all the relevant documents, even though officer was planning to reissue the notice by mentioning all the relevant sections. ये हाँ ये हुआ था, तब क्लाइंट कोऑपरेट नहीं किया, कोई बात नहीं, क्लाइंट हर तरह के होते हैं। अब एक दूसरा नोटिस आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ सुप्रीम प्लेस्ड इन रेफरेंस वेरिफिकेशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, और ये ऑन एग्जामिनेशन ऑफ जीएसटी पेमेंट पर्टिकुलर्स ऑफ दिस, देयरफॉर टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ वेरासिटी ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, आपको ये सब सारी डिटेल लेके आनी पड़ेगी। साइंड है, नेम मिसिंग है, सुपरिटेंडेंट है। बताइए इस नोटिस में गलती बताइए।
प्लीज आप लोग सारे लोग जीएसटी एक्सपर्ट्स हैं और मैं मानता हूं इस बात को, तो जवाब तो आना ही चाहिए, नहीं जवाब आएगा तो कोई फायदा नहीं है। जब मैंने जीएसटी 2017 में से पहले सीखना शुरू किया था तो बहुत सारे स्पीकर को सुनता था और ऐसे सुनता था कि आई एम ए स्टूडेंट। प्लीज, इस नोटिस में भी क्या प्रॉब्लम है कि सेक्शन मेंशन नहीं है ना? हाँ जी, सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी सेक्शन मेंशन नहीं है। अब इसका, और एक बात बताइए, ये वेरिफिकेशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको नहीं लगता ये ऑफिसर जबरदस्ती परेशान करने के लिए नोटिस इशू कर रहा है? उसके पास पावर कहां से आ रहा है ये नोटिस इशू करने का कि वो मेरा आईटीसी को वेरीफाई कर सके? किस सेक्शन में पावर आ रहा है? क्या बिजनेसमैन ऐसे ही परेशान करते रहेगा? ऑफिसर बिना किसी सेक्शन को मेंशन किए ऐसे ही इन जनरल नोटिस इशू कर देगा? 19, 20, 20, 21 कौन था? और 1 वीक का टाइम दे रहा है। कहां से आ रहा है ये 1 वीक का टाइम? आपको नहीं लगता ये इलीगल नोटिस है? देखिए, the name of the officer and the relevant provisions under which this notice issued is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. Further, documents records are being demanded under which section not mentioned, and also payment of output tax by utilizing more than 90% of ITC violates which provisions of GST law is also not mentioned. तो ये कह रहा था कि you are setting off more than 90% of your total GST liability through ITC. मुझे एक बात बताइए, जीएसटी कानून में ऐसा कोई कानून है जहां पर मैं अपना मोर देन 90% आई कैनॉट यूटिलाइज? क्या प्रोहिबिट कर रहा है? मेरा आउटपुट टैक्स 100 रुपया है, मेरे पास आईटीसी 90 रुपया है, मैं 90 रुपया यूटिलाइज करके और 10 रुपया कैश में पेमेंट कर रहा हूं। क्या कोई कानून है कि मैं 90% यूटिलाइज नहीं कर सकता आईटीसी फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी? प्लीज, रूल 86 बी में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते हैं तो आपको 1% ऑफ आउटपुट टैक्स कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। मैं इसका जवाब देता हूं, दिखाता हूं आपको। हमने इसका जवाब दिया दैट दिस पार्टनरशिप फ्रॉम एंगेज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस, आप ये सारी चीजें मांग रहे हैं, अवर सबमिशंस that all input tax credit has been availed as per section 16 of CGST Act by complying all due procedures, that we have not claimed excess credited in 3B versus vis-a-vis 2A for the period 1920 2020, which can be easily be verified by you from the GST portal, that there is no provision in GST law which prohibit us to utilize more than 90% of ITC for payment of output tax. ये एक जनरल हमने लॉ का ग्राउंड लिया। फिर now I am questioning the notice itself. Kindly let us know in case your good office requires any further details, we are providing the same. Kindly let us know under which section inquiry has been initiated so that proper reply can be framed. It is humbly prayed that in the interest of justice, not in the interest of the revenue, in the interest of justice, hearing opportunity be given before passing of any adverse order signed. इसके बाद क्या हुआ होगा? ये सारा हमसे मांग रहा था, परचेज रजिस्टर, लेजर, ये सब मांग रहा है, परचेज इनवॉइस की मांग रहा है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमें एक दूसरा नोटिस इन्होंने भेजा और इस नोटिस में लिखा हुआ था, क्योंकि हमने कहा कि भैया किस सेक्शन में आप मांग रहे हैं जरा ये बता दीजिए, तो उन्होंने लिखा इन दिस रिगार्ड प्लीज रेफर टू रूल 56 सब रूल 18, 57 सब रूल 2 and 57 सब रूल 3, read with section 35 of CGST Act for your queries as mentioned in your letter dated this. According to rule 56 sub rule 18, every registered person shall on demand produce the books of account which he is required to maintain under rule 56, read with section 35 of CGST Act 2017. अब देखिए ये सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का SMT 10 भी सेक्शन कोट नहीं कर रहा है, वो एक रूल कोट कर रहा है, रूल 56 सब रूल 18. नाउ प्लीज आइडेंटिफाई वेदर एज पर रूल 56 सब रूल 18 कैन ही डिमांड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मैं 56 रूल 18 दिखलाता हूं आपको.
इसका सब रूल 18 पढ़िए एक बार। Every registered person shall, on demand, produce the books of account which is required to maintain under any law for the time being in force। क्या इसमें उसके पास पावर आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल मांगने का, परचेज इनवॉइस की डिटेल मांगने का, लेजर मांगने का? प्लीज कह दीजिए। सतीश अग्रवाल जी का ऑन हुआ था, प्लीज कहिए। Will you get power from this rule 56 sub rule 18 to demand books of accounts? भारद्वाज जी प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए पार्टिसिपेंट्स को कि कुछ बोलें। यस यस। हाँ सतीश जी बोलिए बोलिए। क्या लग रहा है सतीश जी, 56-18 में मांग सकता है? यस सर, मांग सकता है। अच्छा, इस ऑफिसर का नाम कुछ लिखा हुआ है? वरुण कुमार जी बोलिए। ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ। कौन मांग सकता है? सुपरिटेंडेंट मांग सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर मांग सकता है, कौन मांग सकता है? कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा ना। दूसरा क्या नहीं लिखा हुआ? शैल ऑन डिमांड कहाँ प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है? अपने ऑफिस में या मेरे यहाँ आएगा तो प्रोड्यूस करना है? अपीयर्स के वो आएगा तब करना है। वो आएगा, और वो आएगा किस सेक्शन में? वो किस सेक्शन में मेरे ऑफिस आ सकता है? मेरे गोडाउन आ सकता है, मेरे फैक्ट्री आ सकता है, किस सेक्शन में? सेक्शन 65 ऑडिट के केस में, सेक्शन 66 ऑडिट के केस में, सेक्शन 67 सबसेक्शन 1, 2 इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के केस में। It means that this 56 sub rule 18 is helping audit, chapter of audit and chapter of inspection search and seizure. तो ये में से 56-18 is not the section, general section from where he can demand anything from me. क्लियर है? यस। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब ऑडिट करने हम लोग आए तो आप ऑडिट टीम को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन डिमांड प्रोड्यूस कर दीजिएगा। तो दिस इज नॉट द डायरेक्ट सेक्शन। तो हमने यही बात उसको समझाई भी और लिखी भी। अब हमने जवाब क्या दिया? देखिए, हमने बड़ा क्रिप्टिक जवाब दिया, और हमें जब जवाब हम लोग देते हैं, वी आर नॉट हियर टू एडुकेट द ऑफिसर, करेक्ट है? हम लोग ऑफिसर को कभी भी एडुकेट नहीं करेंगे। और देखिए, हमने वही रिप्रोड्यूस कर दिया our submission। और मैं आपको बताता हूं that the learned officers requires us to produce documents records under rule this। In this regard, it is submitted that section 35 read with this provides for maintenance of accounts and records including electronic records। Further, 56 sub rule 18 provides that accounts and records which are maintained are to be produced on demand। In our humble submission, the said rules are not attracted in the instant case। Further, it is settled principle of law that a power under a taxing statute are to be exercised with proper safeguards and diligently। That in the absence of inherent safeguards and in the absence of express authorization, आप मतलब समझ लीजिएगा, express authorization का मतलब expressly किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिखा हुआ है। Under the CGST Act or rules, CGST Rule 56 sub Rule 18 is not attracted। Prayer कुछ लिख दिया। Outcome, as of today, this illegal inquiry proceeding was dropped and no further notice was इशू। वो इशू कर सकता था सेक्शन 61 में SMT 10 इशू करता है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न का, लेकिन उसने आज तक अभी तक कुछ नहीं किया इस क्लाइंट के केस में। इसमें कुछ किसी का इनपुट देना है तो इनपुट दे दीजिए। मैं मानता हूं, देखिए मेरे पास, मैं पूरे इंडिया से हमारे पास केस आते हैं क्योंकि मैं सारा ऑनलाइन हूं, तो इंडिया केस आते हैं। ऐसे नोटिस को हमने रिप्लाई दिया है। ये मैं आपको स्टेट नहीं बता सकता, लेकिन है, दिल्ली का नहीं है। मैं और एक दिखलाता हूं आपको। Government of India officer of the assistant commissioner placed in inquiry in respect of DG arm number 45। आपके पास ऐसे नोटिस आए हैं DG आर्म का? अरे कितने लोग नोटिस हैंडल कर रहे हैं? दो तरह का प्रैक्टिस होता है, एक रिटर्न फाइलिंग वगैरह वगैरह, और दूसरा लिटिगेशन एस्पेक्ट। आप लोगों के पास आ रहे होंगे ऐसे नोटिस DG आर्म
डायरेक्टर जनरल एनालिटिकल रिस्क एंड मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट है जो जीएसटी के डेटा को एनालिसिस करता है, फिर अपने ऑडिट डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस में भेजता है कि इस जीएसटीएन नंबर में ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये नोटिस आया है, बताइए इसका क्या जवाब देंगे आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर ऑफ द सिस्टम प्लेस दिन, ये मैंने सारा नोटिस दिखा दिया, बताइए इस नोटिस में गलती ढूंढिए आप, गलती। कैसे होगा प्लीज बताइए। सतीश अग्रवाल जी, जीएस आहूजा जी, एनके गल्होत्रा जी, भारद्वाज जी, प्लीज डू स्पीक। मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पार्टिसिपेट, मेक इट इंटरेक्टिव। जो भी बोल सकते हैं वो बोलिएगा प्लीज, सभी लोग काम करते हैं, हम जीएसटी का थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा काम करते हैं आप लोग सब जीएसटी का। देखिए, मैं अगर ऐसे वन वे बोल के चला जाऊं तो कोई फायदा नहीं है। मैं मैक्सिमम नोटिस डिस्कस करना चाह रहा हूं। अच्छा चलिए मैं ही बोलता हूं। देखिए, इसमें अगेन सेक्शन इज नॉट मेंशन्ड, सिग्नेचर इज मिसिंग, क्वेश्चन मार्क वाला सिग्नेचर इज मिसिंग, नेम इज मिसिंग। Is it a proper notice? Is it a valid notice? Don't you think it is an illegal notice? आप सोचिए, इसके बेसिस पे आप लेके चले गए तो आपके अगेंस्ट वो क्या एक्शन लेगा, और कहीं आपने DRC 03 से पेमेंट कर भी दिया तो आप उसको अपील में भी नहीं जा सकते, क्योंकि शोकॉज नोटिस इश्यू नहीं हुआ है। शोकॉज नोटिस इश्यू होगा, ऑर्डर पास होगा DRC 07 में, तब जाके उसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकेंगे। ये नोटिस के बेसिस पे वो सिर्फ आपको और आपके क्लाइंट को परेशान करता रहेगा। ठीक बात है या नहीं है जी? तो ऐसे केस में आपका जो पहला, आज एक बात बताइए, ऑफिसर आपको डराता कैसे है? क्यों डराता है ये सोच के देखिए आप। क्योंकि वो आपकी गलतियां पकड़ता है, और ऑफिसर वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। आप सीजीएसटी एक्ट में और रूल्स में आपने देखा होगा ना, हर जगह ये लाइन लिखी होती है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। डोंट यू थिंक you should also work in the interest of the client, though in the interest of the justice as per law? आज आपसे ऑफिसर गलती निकाल के आपको लॉ कंप्लाई करवाता है। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ऑफिसर की गलती निकाल के उसको लॉ कंप्लाई करवाया जाए। दोनों तरफ से लॉ कंप्लाई होगा ना, कि एक तरफ से ही होगा। तो हम लोग इसी टेक्निकल ग्राउंड पर गए और उसको कहा, भैया सेक्शन बता दीजिए आप। द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर, बिना सिग्नेचर के कौन सा नोटिस होता है भैया, बता दीजिए मेरे को। And the relevant provisions under which this inquiry is being initiated is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. In addition to above issue, this inquiry also contained many spelling mistakes. आप देखिए, मैंने as it is कर दिया। लेजर की स्पेलिंग देख लीजिए, कंपाइलेशन की स्पेलिंग देख लीजिए, ये लेजर की स्पेलिंग देख लीजिए। इसका मतलब प्रॉपर ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए नोटिस इश्यू कर रहा है, न सिग्नेचर कर पा रहा है, न अपना नाम लिख पा रहा है। क्या जीएसटी लॉ में कहीं भी लिखा हुआ है कि आप बिना नाम के नोटिस इश्यू कर सकते हैं, बिना सिग्नेचर के नोटिस इश्यू कर सकते हैं? और आप इस नोटिस के बेसिस पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं, अपने आप ये वैलिड नोटिस हो जाता है बिकॉज ऑफ सेक्शन 160 सबसेक्शन 2। और ये नोटिस पोर्टल के ऊपर आया है या फिजिकल सर्व हुआ है? स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से बिना साइन, तो फिर हम रिप्लाई भी क्यों करें? ये अच्छा सवाल है, रिप्लाई भी कर, हाँ मत कीजिए। वो रिमाइंडर पे रिमाइंडर भेजता रहेगा, फोन करता रहेगा, मत कीजिए। अल्टीमेटली आपसे वो बोलेगा ना, भैया क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो। बोले ऐसे तो हजारों चिट्ठियां आती रहेंगी, हम देते रहेंगे। हाँ, प्रॉब्लम ये है, डिन भी लिखा हुआ है। डिन का मतलब पोर्टल पे भी अपलोड है सर? कुछ मतलब जीएसटी पोर्टल पे नहीं है, उनके पोर्टल पे है सर। कुछ जो है जीएसटी पोर्टल पे नोटिस नहीं है, लेकिन फिजिकली बाय पोस्ट रिसीव हो रहे हैं, वो सिर्फ मिसमैच के हैं नोटिस।
उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर लॉ में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिकली, इसका मतलब वो पोर्टल पे आना चाहिए, जैसे DRC 01 पोर्टल पे ही आना चाहिए। अगर वो स्पीड पोस्ट से आया तो वो इनवैलिड नोटिस है। आप समझिए, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है कहानी है। You know that this notice can be questioned at the higher authority, but first you have to question this notice to the issuing authority, that is the superintendent. तो आप देखेंगे हाई कोर्ट में बहुत सारे ऑर्डर क्वैश हो गए ऑन दीज टेक्निकल ग्राउंड्स ओनली। तो हम लोग हाई कोर्ट के इतने सारे जजमेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते हैं कि वो जजमेंट तक, वो हाई कोर्ट में वो केस पहुंचा क्यों, क्या कारण था। सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन उसके जो इजाद हुआ था वो जीरो से कैसे स्टार्ट हुआ था, वो भी तो सोचना होगा आपको। आप देखिए मेरिट बेसिस पे आप, वो क्लाइंट बिल्कुल हारने वाला था। मेरे पूरा का पूरा मेरिट देखेंगे तो वो पूरा मेरिट के बेसिस पे दैट केस वाज अगेंस्ट द क्लाइंट, बट ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एंड लॉ ग्राउंड द केस वाज वॉन बाय द मेनी फाइनेस्ट लॉयर्स इन द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स। तो वही चीज मैं आपको इस इंटरेक्टिव सेशन में आपको बताने की भी कोशिश कर रहा हूं। चलिए, तो अब इसका हमने जो जवाब लिखा हुआ मैं दिखाता हूं आपको। Our submission again cryptic, we are not educating the officer. The GST law contains many provisions which has given functional jurisdiction to proper officer, to a proper officer. हमने यहाँ पर the word use नहीं लिखा है, याद रखिएगा। ए प्रॉपर ऑफिसर, फंक्शनल जुरिस्डिक्शन मतलब वो क्या क्या काम कर सकते हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, दूसरा फंक्शनल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि व्हाट आर द पावर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर। ऑल सच फंक्शनल जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ए प्रॉपर ऑफिसर विद इन द रिल्म ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के बाहर जाके वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जीएसटी लॉ के अंदर ही एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ऑल सच फंक्शनल जुरिस्डिक्शंस आर अटैच्ड विद कंडीशंस, restrictions and prescribed forms for issuance of notice or communication. Unless all such conditions are satisfied, any issuance of notice or communication is bad, arbitrary, and consequently shall not have any legal effect, even if it contains din. To be a valid notice, that format and content need to be strictly adhered to. Otherwise, that notice becomes an invalid notice, or it simply becomes an informal communication without backing of law. Any demand of records or public documents should be as per law and not as per the wishes of the officer. यहाँ भी प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा, ऑफिसर लिखा है। Prayer to drop this arbitrary inquiry proceeding immediately. In case, please grant us an opportunity of being heard. ये जवाब दिया। क्या हुआ होगा इसके बाद? ये काम मेरे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू आया था, इसके बाद ये जवाब दे दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ होगा सोचिए। देखिए हर नोटिस एक दूसरे से अलग होता है, हर ऑफिसर उस नोटिस के जवाब का हर एक अलग अलग ढंग से रिएक्ट करेगा। क्या किया उसने देखिए मैं बताता हूं, ऑफिसर ने फोन किया, बोला कोई बात नहीं सर, ABCD छोड़ दो, सिर्फ F दे दो। एक बात बताइए, वाकई में वो इंक्वायरी कर रहा होता तो सारा कुछ मांगता, A से लेकर F तक। फोन पे क्यों बोल रहा अच्छा कोई बात नहीं सिर्फ F दे दो, बाकी छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए, the taxpayer got a call that at least submit the document which is asked in point F, and thereafter a new notice was issued। और वो नया नोटिस देखिए इसने क्या इश्यू किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर प्लेस डिन लिखा हुआ इंक्वायरी, और उसने जो सेक्शन कोड किया वो किया 151 में। हम लोग ये मांग रहे हैं। अब इस जवाब से वो कैसे पता लगा लिया कि वो मैं सेक्शन मांग रहा हूं इससे, क्योंकि जिसके थ्रू काम आया था उस ऑफिसर ने जब फोन किया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कह दिया कि मैं सेक्शन पूछ रहा हूं, इसमें किस सेक्शन में ये नोटिस चाहिए, तो उसने सेक्शन कोड किया 151। In this connection, it is once again requested to submit all required documents, records of documents to this office immediately, as mentioned in the said letter dated this under section 151 of CGST Act 2017. Again, signature missing, नाम missing। बताइए अब आप लेके जाएंगे? प्लीज।
लेके जाना तो नहीं लेके चाहिए। जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाना चाहिए संदीप जी? सिग्नेचर है हमारी, कोई ऑथेंटिसिटी क्या है तो किसने दिया ये नोटिस? अगर नाम है तो सिग्नेचर और नाम नहीं है इसलिए लेके नहीं जाना चाहिए। 151 ठीक सेक्शन है, 151 में पढ़ता हूँ आपके साथ। हाँ जी, उसमें क्या मांग रहा है वो ये देखें। हाँ, एक बार 151 पढ़ लेते हैं हम। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, the commissioner or an officer authorized by him may, by an order, direct any person to furnish information relating to any matter dealt with in connection with this act within such time, in such form, in such manner as may be specified. मैंने तो मना करा उसको। ऑडियो आउटपुट सही है। फोन, ये तो ठीक है। आउटपुट सही है ना? हाँ मतलब मेरे कान में आवाज है। प्लीज जैन साहब। हाँ, 151 में क्या, does the officer gets the power to ask for information under section 151? मतलब वो सेक्शन 61 में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न भी नहीं कर रहा, ना सेक्शन 65 में ऑडिट कर रहा, ना सेक्शन 67 में इंक्वायरी कर रहा है, वो सीधे 151 इशू कर रहा है। Does he got the power? No. 151 तो बहुत ज्यादा पावर हो गया ना कि कोई भी कमिश्नर और ऑफिसर, पूरा जीएसटी एक्ट का जो प्रॉपर ऑफिसर वो कमिश्नर है। आप कमिश्नर का डेफिनेशन पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ भी है। और कमिश्नर किसी को ऑथराइज करेगा तो वो कुछ भी मांग सकता है। इज इट पॉसिबल? क्या 151 में उसके पास पावर आता है? हाँ या ना? देखिए 151 इससे पहले क्या था, पहले ये देख लीजिए। 151 सब्स्टिट्यूट हुआ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 और इसमें ये था 151 में पावर टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ था। इसको स्टैटिस्टिक्स को करके इंफॉर्मेशन कर दिया। कस्टम्स एक्ट में भी देखेंगे तो शुरू से इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। द कमिश्नर मे इफ इट कंसिडर्स दैट इट इज नेसेसरी सो टू डू बाय नोटिफिकेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ नोटिफिकेशन, यहाँ क्या लिखा हुआ ऑर्डर, डायरेक्ट्स दैट स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विद। मतलब स्टैटिस्टिक्स की जगह क्या लिख दिया, इंफॉर्मेशन लिख दिया। Upon such notification being issued, the commissioner this may call on the concerned person to furnish such information return. ये इंफॉर्मेशन रिटर्न आप ये समझ लीजिए जो इनकम टैक्स में बैंक्स ये सब देते हैं वो है। हमने 151 बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया। अच्छा एक बात बताइए, 151 के अलावा इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या होता है कि आप ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं देंगे किसी को भी जो आप ही के अगेंस्ट यूज किया जाए। इज इट पॉसिबल? Will you give any evidence which can be used against you only? अरे कह दीजिए हाँ या ना। नहीं, नो। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रोकता है। दिस इज, मैं आपको दिखलाता हूं, मैं आपको 151 पूरे एनालिसिस करके दिखलाऊंगा। रुकिए, आर्टिकल 22 में होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, पेज नंबर क्या था इसका? ये देखिए आर्टिकल 20, नो पर्सन अक्यूज्ड of any offense shall be compelled to be a witness against himself. अब मैं आपको उसमें लेके आता हूं सीजीएसटी एक्ट में। देखिएगा ये 151 है, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, बार ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है 152 कहता है कि आप उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पब्लिक में प्लेटफॉर्म पे नहीं डालेंगे।
और आप 150 पढ़ेंगे तो 150 लिखा ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न एनी पर्सन बीइंग अ टैक्सेबल पर्सन। नॉट टैक्सेबल पर्सन मींस व्हाट, यानी कि ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन किया, वो बी से ए का इंफॉर्मेशन ले सकता है, ए से बी का इंफॉर्मेशन ले सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन ले सकता है। लोकल अथॉरिटी, बैंक, इनकम टैक्स अथॉरिटी, बैंक, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब का इंफॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, तो इनको इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करना है। तो अगर आप 151 को 150 के साथ पढ़ेंगे, 152 के साथ पढ़ेंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि दिस 151 इज द पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगने का है, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टी। डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टी मांगना है तो सेक्शन 65 कर दे, सेक्शन 61 कर दे, ये नहीं हो सकता। आई होप एवरीवन एग्रीज। यस। अब मैं इसका जवाब दिखला रहा हूं आपको। सर 151 तो वैसे भी उस केस में लगता है ना, जैसे सर्च के केस में, या फिर अगर गुड्स की मूवमेंट होती है और पकड़ लेते तो 151 का इशू करते हैं ना नोटिस। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करते 151 का नोटिस। 129 है, 130 है, वो पेनल्टी का नोटिस है। कहां से आ रहा है भव्य अग्रवाल जी ये वाला पॉइंट आपका? आपने देखा है ऐसा कोई नोटिस? सर मैंने पढ़ा था पहले कि ये 151 की पावर जो है वो तभी लगती है जब वो सर्च सीजर और उस केसेस के अंदर। नहीं, वो पता नहीं, आप मुझे दिखलाइएगा। चलिए आइए, हमने जो रिप्लाई दिया वो मैं पढ़ता हूं यहां से। वी आर कंप्लीट जीएसटी कंप्लायंस टैक्स पेयर बोथ इन लेटर एंड इन स्पिरिट। ये इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ऑफिसर फोन करके धमकी देने लगा था। वी हैव बीन रेगुलरली फाइलिंग आवर रिक्वायर्ड रिटर्न एंड पेइंग टैक्सेस इन टाइम एंड ऑल्सो रिप्लाइंग टू ऑल नोटिसेस एज पर लॉ विद इन टाइम. We have even not ignored unlawful communication by your good office, and we have replied to that communication also. Now with this regard to this communication, where we are asked to produce documents or records immediately as per section 151, section 151 read as under, वो हमने लिख दिया. As per section, the commissioner or an officer authorized by him by an order. ये बाय एन ऑर्डर से क्या ऑफिसर को ऑथराइज करेगा या ऑर्डर इशू करके कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मांगेगा? क्या मतलब निकाल रहे हैं आप? ऑथराइज करेगा ऑफिसर को? नहीं, ये नहीं है, डिपार्टमेंटल ऑर्डर होगा। ऑथराइज करने का जो सेक्शन है, एक मिनट, ऑथराइज करने का जो सेक्शन है वो 5 सबसेक्शन 3 है। डेलीगेशन ऑफ पावर का जो सेक्शन है वो 167 है। मैं आपको वो भी दिखला देता हूं, CGST एक्ट सेक्शन 167 दिखलाता हूं। Delegation of power. The commissioner may by notification direct that subject to such conditions, if any, as may be specified in this notification, any power exercisable by any authority or officer under this act may be exercisable also by another authority or officer as may be specified here in such notification. एक गुजरात हाई कोर्ट का केस है इसी 167 के ऊपर। अब मैं आपको आता हूं 5 सबसेक्शन 3। Powers of officer under GST, the commissioner may, subject to such conditions and limitation as may be specified in this behalf by him, delegate his powers to any other officer who is subordinate to him. और delegation कैसे है? By issue of notification है। तो ऑर्डर से वो क्या कर रहा है? ऑथराइज कर रहा है या फिर ऑर्डर से इंफॉर्मेशन मंगवा रहा है? ये देखिए, द कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन। बताइए अब, ऑर्डर से इंफॉर्मेशन मंगवा रहा है। ऑर्डर से इंफॉर्मेशन, तो हमने ये लिखा एज पर द अबव सेक्शन 151 द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड। कमिश्नर इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विद इन कनेक्शन विद दिस एक्ट बट बाय एन ऑर्डर। कमिश्नर ऑर्डर इशू करके इंफॉर्मेशन मांग सकता है। कमिश्नर में ऑथराइज एनी ऑफिसर, ऑफिसर को कैसे ऑथराइज करेगा? बाय नोटिफिकेशन। लेकिन वो हमारा इस रिप्लाई में रिलेवेंट नहीं था तो वो हमने लिखा नहीं। एंड ओनली सच ऑफिसर कैन डायरेक्ट एनी पर्सन टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी मैटर डेल्ट विद कनेक्शन विद दिस एक्ट बट बाय एन। फिर हमने क्या किया, हमने
जीएसटी काउंसिल मीटिंग को एनालाइज करना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें जो मुझे मिला वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्लीज बैकग्राउंड में अगर कोई नरेंद्र जी आवाज आ रही है आपकी बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। नरेंद्र जी। As per 39th GST Council meeting minutes and its agenda item, the objective of amendment of section 151 is clearly spelled out. The amendment has been carried out for more efficient collection of statistics. The relevant extract, page number 201 of volume 1, is for the efficacy of the collection of statistics. It may be ensured that information may be sought as per requirement on a case-to-case basis. The objective of section 151 is to direct any officer or third officer to furnish any information for collection of statistics. This position becomes crystal clear when read with section 152 and section 152. In the instant case, we are neither officer nor third person who can furnish such information. The said communication also says this inquiry is being conducted under DG ARM. फिर हमने DG ARM का वेबसाइट खोलना शुरू किया. The objective of DG ARM is to provide intelligence inputs and to do big data analytics for officers. तो DG ARM जब वो नोटिस भेजता है, मतलब वो अपना रिसर्च या एनालिसिस जो भी किया है वो ऑफिसर को भेजता है, तो ऑफिसर को सेक्शन अप्लाई करके इंफॉर्मेशन मांगना है, तो विदाउट सेक्शन मांगने लगता है. The collection of data oblique intelligence can be made from officers oblique third party and not directly from the taxpayer. Moreover, all the documents which are asked from us is easily available in the portal. All of the following details can easily be extracted by the concerned officer from the portal. The details are as under. ये सारा निकाल सकता है, फिर हमसे मांग क्यों रहा है? To drop this arbitrary inquiry communication immediately. क्या हुआ होगा इसके बाद? इसके बाद मैं आपको बताता हूं हुआ क्या आउटकम में. एक्चुअली इसने सेक्शन ही गलत कोड किया था, 151 नहीं किया. ये जो नोटिस आया था मर्चेंट एक्सपोर्टर को आया था. मर्चेंट एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करता है तो जिसने उसने सप्लाई खरीदी है उस एक्सपोर्ट का प्रूफ उस सप्लायर के जुरिडिक्शनल ऑफिसर को भेजना पड़ता है. तो उसको नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 कोड करना था, लेकिन उसने 151 कोड किया है. तो ऑफिसर को भी शायद नहीं पता था. अल्टीमेटली द टैक्स पेयर डिड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट ऑफ ओनली प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट. सिर्फ ये एफ पॉइंट प्रोड्यूस किया और बाकी कुछ नहीं दिया. Which you have sale at GST rate of this, but not as per section 151, but notification this merchant export. ये था सर. ये तो शिपिंग बिल पे भी मेंशन होता है ना वैसे तो. हाँ, लेकिन आप ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर विल सबमिट द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट टू हिज सप्लायर जिसने उसने कम रेट में खरीदा 0.1%. तो उसके जुरिडिक्शनल ऑफिसर को पता होना चाहिए ये. हाँ, तो उसका जुरिडिक्शनल ऑफिसर मांग रहा था. तो सर वो उसका जुरिडिक्शनल ऑफिसर हमसे मांग सकता है? अच्छा, बीइंग अ थर्ड पर्सन इसलिए तो वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, दो दैट नोटिफिकेशन कैन आल्सो बी चैलेंज्ड. ओके सर, एक बार सेक्शन 150 आप एक बार जो बता रहे थे एक बार दोबारा बता सकते हैं क्या मेरे को? दिखला देता हूँ. 150 ये रहा. एनी पर्सन बीइंग अ टैक्सेबल पर्सन, लोकल अथॉरिटी इसको छोड़ देते हैं. यहाँ हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और एनी पीरियोडिक रिटर्न और डॉक्यूमेंट containing details of payment price and other returns. This is related to a bank account. This shall furnish a information return. बताइए, टैक्सेबल पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है क्या? हेलो. हाँ जी सर. नहीं है ना, इंफॉर्मेशन रिटर्न थोड़ी भरता है टैक्सेबल पर्सन. नहीं. लेकिन अगर टैक्सेबल पर्सन कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो उसको 150 में उसको या 151 में कहा जा सकता है कि सर ये इंफॉर्मेशन रिटर्न भरी है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू फर्निश. ओके. नहीं, बट इसके अंदर इसने जैसे एनी पर्सन बीइंग अ टैक्सेबल पर्सन डाला है और नीचे वो डाला है, तो उससे ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना आपस में. नहीं, थर्ड पर्सन. अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ,
इसका डिटेल नहीं मांगेगा, इस टैक्सेबल पर्सन का डिटेल नहीं मांगेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने या गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, किसको किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका डिटेल दे दो, उसका इन्फॉर्मेशन रिटर्न दे दो, उस तरह से। अच्छा, जहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, वही सब है। देखिए ना, बैंकिंग, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो इनकम टैक्स का ही, इनकम टैक्स में भी तो ऐसा ही है, क्या बोलते हैं उसको, एनुअल स्टेटमेंट बोलते हैं शायद, हाँ समझ गया सर। है ना? ठीक। ये वही है। ये किसी भी हालत में इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स नहीं है। चलिए, ये एक अगेन नोटिस आया था हमारे पास, मैं आपको इसका फैक्ट बता देता हूं कि प्रिवेंटिव टीम में रास्ते में इसको पकड़ लिया, कपड़े ले जा रहा था, तो उसमें जो इनवॉइस दिखलाए तो क्वांटिटी, डिटेल, वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जो उसमें HSN था, उस HSN में रेट होना चाहिए था 12%, लेकिन इनवॉइस में रेट लगाया हुआ था 5%। समझ में आ गया आपको? तो जिसने व्हीकल को इंटरसेप्ट किया था, उसने जुरिडिक्शनल ऑफिसर को ये डेटा भेज दिया। अब वो जुरिडिक्शनल ऑफिसर ये मांग रहा है कि भैया आपका एक व्हीकल कहीं कहीं इंटरसेप्ट हुआ था, रिसिपिएंट ये था, उसका इनवॉइस नंबर ये था, उसमें HSN जो आपने डाला था ये वाला, उस पर रेट 12% होना था, लेकिन आपने 5% लगाया, तो देयर इज टैक्स इवेजन ऑफ 7% ऑन दीज इनवॉइसेस। तो आप पूरा डिटेल लेके आइए, बताइए क्या जवाब देंगे। Submission of tax invoices from last 3 months. और मैं इसका एक फैक्ट बता दूं, इसने HSN गलत लिख दिया था गलती से। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वाज करेक्ट बट HSN वाज रॉन्ग। आपको पता ही है, कपड़े में अगर 1000 रुपए से ज्यादा का रेट है तो 12% का रेट है, 1000 से कम का है तो 5% का रेट है। ठीक बात है? यस सर। तो उसने ये HSN गलत लिखा था, लेकिन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स वाज करेक्ट। नाउ व्हाट शुड बी द रिप्लाई? गलती ढूंढिए ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। जस्ट फाइंड द मिस्टेक्स। मेरिट नहीं, मेरिट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेरिट ऑफ द केस, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन टेक्निकल ग्राउंड एंड लॉ ग्राउंड। मेरिट तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग एक्सपर्ट ही होते हैं कि हाँ डॉक्यूमेंट ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, उस पर नहीं जाना हमें। सेक्शन मिसिंग है, सेक्शन मिसिंग है सर। मिसिंग है, करेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब बताइए और क्या करेंगे अब आप? सेक्शन मिसिंग है, ठीक है। अब उसको कहेंगे कि सर HSN ही गलत लिखा था हमने। नो। Will you admit your mistake? No sir. What happens if you admit your mistake? The defect is Penalty, rectified in interest the and tax everything. वो पेनल्टी लगाएगा He may charge 125 interest की। penalty. आप सोचिए, रूल 46 में कंटेंट ऑफ इनवॉइस में, इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि कंटेंट ऑफ इनवॉइस में दैट HSN शुड बी करेक्टली मेंशन्ड, 4 डिजिट 6 डिजिट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? तो 125 की पेनल्टी नहीं लगाएगा वो? लगाएगा सर, तो अगर एडमिट कर लिया तो। एडमिट कर लिया तो। हम लोग एक बात और कहते हैं नोटिस के रिप्लाई में, जब हम लोग सिखलाते हैं, नेवर एडमिट योर मिस्टेक्स। इसका जवाब कैसे दे? हम लोग को ये तो बताना पड़ेगा ना उसको कि भैया जो रेट है 5% का वो ठीक है, लेकिन HSN गलत है। मैं आपको दिखलाता हूं। The name of the officer and the relevant provisions under which this inquiry is being initiated is not mentioned. Consequently, the taxpayer is unable to identify the proper officer. In this issue, fact was that the description of goods was correctly mentioned, which carried rate of 5%, but HSN was wrongly mentioned, which carried the rate at the rate of 12%. ये कहानी थी। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना था। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ऑफिसर आपकी गलती निकालता है, आपको डराता है। हम ऑफिसर की गलती निकालते हैं डराने के लिए नहीं, लॉ को कंप्लाई करने के लिए। तो हम लोग दोनों काम करेंगे। देखिए, ये हमने बता दिया फैक्ट्स क्या है। अब देखिए, इन रेफरेंस टू, ज्यादा नहीं लिखा हमने, छोटा सा लिखा, द सेट कम्युनिकेशन इशूड बाय यू डू नॉट स्पेसिफाई नेचर ऑफ डेफिशिएंसी which your preventive team noticed during verification of document। तो पहले तो हमने वही क्वेश्चन कर लिया, जो आपको जो प्रिवेंटिव टीम ने जो आपको इंफॉर्मेशन भेजा है वो क्या भेजा है।
वो करेक्ट भेजा रॉन्ग भेजा हमें क्या पता, वही डेफिशिएंसी है। That I submit that as per description of goods, I'm not writing HSM, that as per description of goods and rate of textile as mentioned in tax invoice, the rate was correctly levied and there is no evasion of tax or loss of revenue. हम लोग क्या इसमें नहीं लिख रहे हैं, we are not admitting HSN गलत लिखा, हमने कहा as per description of goods rate तो सही लिखा हुआ है, वैल्यू भी सही है। Kindly let me know under which section of CGST Act inquiry has been initiated so that detailed reply can be framed. काम खत्म। इसके बाद till date the taxpayer did not receive any further communication from the office, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, खत्म। अब आप सोच के देखिए ये सारा कुछ लेके जाते तो क्या होता, उलझाता रहता आपको, आप उलझते रहते। SMT 10 का नोटिस, बताइए ये SMT 10 का नोटिस। Office of the Deputy Commissioner of State Tax, place SMT 10 rule this reference financial year this is to inform that during scrutiny of the return for the taxpayer referred to above, the following discrepancies have been noticed. For the said taxpayer there is discrepancy between tax payable as per outward supply e-way bill date and tax actually paid by return 3B for the corresponding tax period. मैं इसका फैक्ट बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हुआ ये था कि किसी मंथ का 3B में आउटवर्ड सप्लाई 10 रुपया था, गलती से उसने 100 रुपया कर दिए, तो वो क्या करेगा बताइए नेक्स्ट मंथ में? 10 रुपए की जगह 100 रुपया कर दिया, नेक्स्ट मंथ में वो क्या करेगा? 3B नील फाइल करेगा, यस और नो? 3B एडजस्ट करता जाएगा ना, उतना कम 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 करता जाएगा, लेकिन उसका एक्चुअल आउटवर्ड सप्लाई जिस मंथ में उसने 3B 0 फाइल किया, क्योंकि पहले ही एडवांस में वो टैक्स पे कर चुका, उस मंथ में उसका एक्चुअल सप्लाई 3 ई-वे बिल के थ्रू हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? तो यही डिस्क्रिपेंसी थी। उसने कहा कि भाई जिस मंथ में आपने आउटवर्ड सप्लाई ई-वे बिल का किया उस पर टैक्स इतना डिक्लेयर किया और आपने 3B में डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन 3B में क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्योंकि पहले ही आप टैक्स दे चुके थे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द शॉर्ट पेमेंट, इतना ही था। तो हमने क्या किस तरह से इसको जवाब लिखे हैं, किस तरह से जवाब लिखे? देखिए साइंड है, नाम भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, एकदम परफेक्ट SMT 10 का नोटिस है। किस तरह से जवाब लिखे कि ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाए? प्लीज बताइए। कहिए। देखिए हमने क्या किया, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अब किस पीरियड का है ये? अक्टूबर का है। तो हमने क्या किया, 4 महीने का डिटेल, जहां से जिस महीने में उसने एक्स्ट्रा शो किया था, मान लीजिए उसने अगस्त में एक्स्ट्रा शो किया था, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब तक वो एडजस्ट होता रहा, तो मान लीजिए 5 महीने तक वो अमाउंट एडजस्ट होता रहा, तो 5 महीने का हमने डिटेल ई-वे बिल का, 3B का, 1 का हमने सारा लिख दिया बस, और उसको बता दिया। अगर आप सिंगल मंथ में देखेंगे तो प्रॉब्लम है, क्यूमुलेटिव मंथ्स का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टैक्सेबल वैल्यू GST 1 का डिटेल डाल दिया, अगस्त से लेकर नवंबर का 3B का डिटेल डाल दिया, फिर उसको समझा दिया, फिर टेबल 3 में 1 और 3B का डिटेल बता दिया, और बता दिया कि भी एडवांस टैक्स दिया हुआ, और एक सर्कुलर कोड कर दिया कि वी वर अलाउड टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन 3B एज पर दिस सर्कुलर, और किस तरह से रेक्टिफाई करना था वो भी बताया हुआ था सर्कुलर। तो यही किया बस। इसके बाद SMT 10 का एक नोटिस और आया, देखिए, नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी इन द रिटर्न आफ्टर स्क्रूटनी। This is to inform that during scrutiny of the return for the tax period referred to above, the following discrepancy have been noticed as per Rule 86B। 86B और इसमें लिखा हुआ है हाँ, टैक्सेबल टर्नओवर इतना, टोटल टैक्स पेबल इतना है, और इसने क्या किया, सारा ITC यूटिलाइज कर लिया ये टैक्स को पेमेंट करने के लिए, और जो कैश में पेमेंट किया वो 0.005% ही पेमेंट किया। बताइए रूल 86B का वॉल्यूशन है या नहीं है?
और इसने ये भी लिखा कि आप क्या कीजिए, ये सेल परचेज का रजिस्टर ले आइए, पेमेंट रिसीव ले आइए, अकाउंट्स ऑफ आईटीसी अवेड ले आइए, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ मांग रहा है। बताइए 15 दिन के अंदर सिर्फ क्या है कि उसने कैश से पेमेंट 0.005% किया है। मैं इसका जवाब चाहता हूं आप लोग से, क्या जवाब देंगे? हमने एक नोटिस में ही इसको खत्म ही करवा दिया था, छोटा सा रिप्लाई दिया था, खत्म। इट इज रूल 86B, मैं आपको दिखलाता हूं। हम कुछ भी लेके नहीं गए थे इसके पास। Restrictions on use of amount available in electronic credit ledger. Notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupees। तो इसका करोड़ों रुपए का टर्नओवर भी था। और एक्सेप्शंस लिखा हुआ था कि अगर पिछले 2 साल में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स भरा है, पेड मोर देन 1 लाख रुपीज, तो आपको रूल 86B के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। बाकी तो रिफंड ये सब का केस था। बताइए रूल 86B एक्सेप्शन में फॉलो हो रहा है सर ये? हाँ जी, एक्सेप्शन में फॉलो होगा ये? हाँ, इसका 1 लाख से ज्यादा था, करेक्ट। एक्सेप्शन में तो एक्सेप्शन फॉलो। ठीक है। और पेज 29 और सर एक चीज और हो सकती है कि अगर इसका बैलेंस शीट में हम देखें कि इसकी लिक्विडिटी कैश इतना था नहीं, लेस देन 1% था। फिर अगेन यू आर गोइंग इनटू द मेरिट। वी आर नॉट, हम लोग मेरिट से कोई मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताइए, इसने रूल 86B का जो वॉलेशन है, क्या उसके लिए सेक्शन 61 इज द प्रॉपर सेक्शन? क्या हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं सर, 86B का वॉल्यूशन चेक करने के लिए आपको SMT 10 कैसे इश्यू कर दिया आपने? डज SMT 10 अलाउज या सेक्शन 61 या रूल 99 अलाउज? तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 61। देखिए मैं आपको अपनी किताब दिखा रहा हूं, ये किताब, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमने ये किताब लिखी कैसे है जीएसटी की। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जीएसटी समझ में आना चाहिए, और समझने के लिए आपको एक सेक्शन को रूल के साथ, फॉर्म के साथ लिंकेज होना चाहिए, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होने चाहिए, केस स्टडीज बहुत सारे होने चाहिए। तो मैं पढ़ता हूं एक बार। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न। ये जो हेड नोट में लिखा हुआ, ये मेरा लिखा हुआ है, और अगर कोई चेंजेस आए हैं लॉ में तो वो हमने फुट नोट में लिखे हुए हैं। जब जब चेंजेस आए हैं वो फुट नोट में लिखे हुए हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो इसलिए फुट नोट में है नहीं। कमाल है, तो असेसमेंट में कुछ चेंजेस नहीं है। ये देखिए इसमें कुछ चेंजेस है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग के मिनट्स भी हमने लिखे हुए हैं। तो आइए मैं पहले सेक्शन 61 पढ़ता हूं आपके साथ, आप पढ़िएगा मेरे साथ तो आपको समझ में आएगा। ये पैराग्राफ का एक जिस्ट हमने बना दिया। सीकिंग एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्क्रिपेंसीज, द प्रॉपर ऑफिसर, हु इज द प्रॉपर ऑफिसर? सुपरिटेंडेंट। नाउ ये हमने कहां से लिखा? एक सर्कुलर है 3/3/2017, वहां पर लिखा हुआ है द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न। तो स्क्रूटनाइज कैसे करेगा? बेसिस ऑफ सिलेक्शन क्या है? रूल 99 में लिखा हुआ है। द रिटर्न, रिटर्न का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 97 में है, और 297 में रिटर्न का मतलब जो सेक्शन 39 में है, तो 3B है, 9 है, 9C है। अब सवाल उठता है कि ट्रांस 1 ट्रांस 2 रिटर्न है, यस और नो? हेलो,
is transfer return means any return prescribed or otherwise required to be furnished by or under this act or the rules made thereunder. तो देखिए ये सेक्शन 39, 44, 45, 52 एंड 55 ये सेक्शन में जो भी फॉर्म लिखे हुए हैं वो रिटर्न है और द रूल्स मेड देयरअंडर. तो रिटर्न का फॉर्म हमने लिख दिया 3B, 4, 5 this TDS, TCS, annual return and final return, but GST or 1 is not a return but a statement under section 37. तो 1 भी रिटर्न नहीं है, याद रखिएगा. लेकिन 1 के बेसिस पे स्क्रूटनी रिटर्न का SMT 10 का तो नोटिस इशू होता ही है. तो जब आप रूल 99 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम. कौन सा इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है? 1 का है. फिर मतलब 1 का अवेलेबल इसलिए 3B के साथ मैच कर दे रहा है, 2B के साथ मैच कर रहा है. तो 2B रिटर्न नहीं है लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. 2B ऑटो पॉपुलेट होके आता है. 2B एंड 3B और एनी मैचिंग विथ एनुअल रिटर्न. अब आइए, अब क्योंकि ट्रांसफर ट्रांस टू रिटर्न नहीं है तो उसका SMT 10 का नोटिस के बेसिस पर स्क्रूटनी आता है तो दैट कैन बी चैलेंज्ड. एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इस 2A और 2B रिटर्न अभी हमने बता दिया फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर. आप देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो रिलेटेड पर्टिकुलर्स रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश करेगा उसी का वो स्क्रूटनी कर सकता है. तो 2B तो ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन तो फर्निश ही नहीं कर रहा, लेकिन रूल्स में लिखा हुआ है कि हम लोग को करना है. अवेलेबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल विथ हिम टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न. बताइए करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? क्या रूल 86B का वॉल्यूशन कैन बी टर्म्ड एज दैट दे आर वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न? बताइए यस और नो. नो यस नहीं कर सकता है. इट इज करेक्टनेस. कंप्लायंस ऑफ लॉ है या नहीं है, वो तो करेक्टनेस तो है ही ना. सर रिटर्न की बात हो रही है, लॉ की बात तो हो रही है. रिटर्न में देखिए 3B इज द रिटर्न और 3B कहता है कि दैट 3B शुड बी फाइल्ड एज पर द कंप्लायंस ऑफ लॉ. एंड लॉ में रूल 86B आता है. रूल 86B कहता है कि आपको आउटपुट टैक्स का 1% कम से कम कैश में पेमेंट करना चाहिए इफ यू डू नॉट फॉल इन एक्सेप्शन. राइट. हेलो, तो करेक्टनेस का मतलब तो निकलेगा ही निकलेगा. हाँ, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द रिटर्न इवन फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द एक्ट और रूल्स. लिख ही दिया हमने. SMT 10 कैन बी इशूड. तो अगर आपने आपका कोई भी कंप्लायंस नहीं किया एक्ट का या रूल का तो इशू हो सकता है. एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ द डिस्क्रिपेंसी नोटिस इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड सीक हिज एक्सप्लेनेशन देयरटू. बताइए वो क्या मांग सकता है आपसे? एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट? हेलो, एक्सप्लेनेशन. सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांग सकता है. आपने देखेंगे अभी उसमें नोटिस में वो क्या क्या मांगने लगा. परचेज रजिस्टर, परचेज इनवॉइस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और आपके पास भी नोटिस आया होगा SMT 10 का जहां पर वो सारा डॉक्यूमेंट मांगने लगता है. आया है किसी के पास? हेलो, अगर आया है और आप लेके जा रहे हैं तो आप 160 सबसेक्शन 2 में उस SMT 10 को ऑटोमेटिकली वैलिड कर दिया बिकॉज यू डिड नॉट क्वेश्चन द नोटिस ऑन टेक्निकल ग्राउंड और लॉ ग्राउंड. अब आइए, तो ये करेक्टनेस का मतलब रूल 86B का वॉल्यूशन वो चेक कर सकता है. ये तो ठीक है. अब हम लोग वापस में नोटिस में आता हूं. इस नोटिस में अब हमने इसका जवाब देखिए क्या दिया. हमने उसमें सिंपली ये लिखा ग्राउंड्स ऑफ रिप्लाई 86B कोड किया, एक्सेप्शन कोड किया और इसको 2 फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स कितना पेमेंट किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ भेज दिया और कहा क्वैश कीजिए इस नोटिस को. टिल टुडे द टैक्स पेयर नीदर रिसीव्ड SMT 12 नॉर रिसीव्ड एनी फर्दर नोटिस. दिस ये हुआ. और हमने तो ये भी क्वेश्चन करना चाह रहे थे कि ये नोटिस जो हमें मिला है वो yahoo.com से मिला है. अब yahoo.com से अगर कोई नोटिस आता और कहता मैं इनकम GST डिपार्टमेंट से, तो आपको शक होगा ही. अब आपने अगर इसको भेज दिया तो आप हो सकता है साइबर फ्रॉड के हिस्सा बन जाए. तो हमने ये भी क्वेश्चन किया था उसको. खैर क्लाइंट ने कहा हटा दो तो हमने हटा दिया. एक और SMT 10 और ये SMT 10 17-18 का और इतने का डिस्क्रिपेंसी बता रहा है और ये कह रहा है एनेक्सर A में ये सारा डिटेल लेके आओ, ले जाओ. बताइए क्या करेंगे आप?
सर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कि एक्सप्लेन करेंगे, ये एनेक्सर ए भर के जाएंगे आप? नहीं इन डिटेल्स नहीं लेके जानी ना, सिर्फ पैलिटी नहीं है इतना का, हम सिर्फ उसको बता सकते हैं। क्या बताएंगे आप? SMT 10 में इतना साइंड इतना इंफॉर्मेशन इतना अलाउड। देखिए हमने क्या जवाब दिया है इसको। अच्छा एक बात समझिए, द ऑफिसर कैन नॉट आस्क मी टू क्रिएट एनी न्यू डॉक्यूमेंट, दैट आई विल फर्निश ओनली दैट डॉक्यूमेंट which is required to be maintained under section 35। करेक्ट है? तो ऑफिसर क्या करता है, अपना अपना फॉर्मेट बना के हमें भेज देता है। जो काम ऑफिसर को करना चाहिए वो हमसे करवाने की कोशिश करता है, which is not as per law, but we don't question it, we do it। वो गलत है। अब देखिए, the notice issued in SMT 10 is not as per format prescribed in GST law। एक फॉर्म देख लेते हैं, SMT 10 का फॉर्म क्या है, फॉर्म का फॉर्मेट क्या है। अब देखिए कितने हाई कोर्ट का जजमेंट है जहां पर हाई कोर्ट ने कहा सिंस दिस नोटिस इज नॉट इश्यूड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, इसको हम लोग क्वैश करेंगे। ये देखिए ये फॉर्मेट है, और इसने कौन सा फॉर्मेट में इश्यू किया है, ये एनेक्सर ए लगा के कर दिया। तो हमने लिख दिया इसको। अब देखिए क्योंकि वो मैचिंग करवा रहा है तो हमने रूल 36 सब रूल 4 कोड कर दिया कि ये मैचिंग उचिंग अलाउड ही नहीं था, 2019 से आया था और फिर कुछ प्रेस रिलीज आया था तो वो लिख दिया। तो हमने कहा भैया ड्रॉप कीजिए, मैचिंग आप मत करवाइए। और इसने DRC 01A इशू कर दिया। अब DRC 01A देखिए, DRC 01A ये देखिए, अब DRC 01A ये इशू किया है। ये लिख रहा है वेर इन कोटेड सब रूल 4 of 36 only you have neither submitted any details regarding excess utilization of ITC amounting to this, nor have provided the copies of invoices and payment details thereon. Hence, sub-rule 4 of 36 of CGST Act is not proper justification claiming excess ITC without proper evidences, details of excess ITC, or you are therefore required to reverse this amount. अब DRC 01A देखिए, किस इसका फॉर्मेट देखिए, DRC 01A का। कहाँ गया? DRC ये DRC 01A पार्ट ए, केस प्रोसीडिंग रेफरेंस नंबर, इंटीमेशन ऑफ लायबिलिटी अंडर सेक्शन 73 और 74। अब इस नोटिस में देखेंगे तो इसने कहीं लिखा है 73 74 नहीं लिखा हुआ है। फिर देखिए प्लीज रेफर टू द अबव प्रोसीडिंग, ये एक टेबल बनाना था उसने, ये टेबल बनाया होगा शायद, ये एक टेबल बनाया हुआ, ठीक है। इसके बाद इसका लैंग्वेज है ग्राउंड्स एंड क्वांटिफिकेशन अटैच्ड एज बिलो। क्यों वो ये GST लगाना चाह रहा है वो कुछ भी लिखा नहीं, किस सेक्शन में वॉल्यूशन है वो नहीं लिख रहा है। फिर या तो 73(1) लगाएगा या 74(1) लगाएगा, कोई एक पैराग्राफ लिखना है, दोनों लिखा हुआ तो कहीं टिक लगाना चाहिए, वो टिक भी नहीं है। और इसके साथ वो पार्ट बी का फॉर्म अटैच करेगा जिसमें मुझे रिप्लाई देना है, वो पार्ट बी का फॉर्म भी इसके साथ अटैच्ड नहीं है। The name of the officer is missing in the notice and the said intimation is not as per format of form DRC 01A। हमने इसको लिख दिया भैया कि ये आपका रिप्लाई है। The said notice, ये तो पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ क्या क्या हुआ। The said notice issued in
issued in DRC 01 is not as per the format issued in GST law and therefore is incapable of detailed reply. Also, sufficient time has not been given for making of reply. अब तक इसका कोई अभी रिस्पॉन्स आया नहीं है, वेट कर रहे हैं. प्लीज अपना ओपिनियन दीजिए, कुछ कहना चाहता है कहिए. आप लोगों के पास नोटिस आया होगा ना, उस नोटिस के बारे में जरा डिस्कस करते हैं. किसके पास ADT 01 का नोटिस आया हुआ है, प्लीज बताइए. आपके साथ लाइव नोटिस डिस्कस करते हैं. ADT 01 का नोटिस है किसी के पास आया हुआ? हेलो, प्लीज बताइए. ADT 01 अच्छा कोई भी नोटिस, SMT 10, ADT 01, कोई भी जनरल नोटिस आया हो, लेट अस डिस्कस दैट. क्वेरी पूछिए. निकालो सर, बहुत नोटिस आते हैं. अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ उससे फायदा हो रहा है या नहीं फायदा हो रहा है? ऐसा लग रहा है वन वे कम्युनिकेशन है. नहीं सर, हो रहा है, फायदा हो रहा है. हाँ तो वो नोटिस आपके पास, भव्या जी नोटिस तो दिखलाइए. कोई नोटिस आया होगा ना आपके पास, किसी के पास भी कोई भी नोटिस आया हो, किसी भी तरह का GST नोटिस आया हुआ, चाहे कैसे भी आया हो, प्लीज बताइए. लेट अस डिस्कस द लाइव केसेस. हाँ सर, आया हुआ है, ये लेकिन एक जितने बार भी, चेक करना. क्या अच्छा चेक अभी करना चेक है नहीं सर? कर पाएंगे आप बताइए उस नोटिस, कौन सा नोटिस है, कोई फॉर्म में आया, जनरल नोटिस है, सेक्शन है या नहीं है, जो भी हमने जितना डिस्कस किया आपके साथ. ऑडिट का नोटिस होगा तो अच्छा लगेगा. प्लीज सर हमारे पास कोई आया भी हुआ है नोटिस. एक बार. यस, मैं एक बार खोल हाँ लेता कौन हूँ, सा, मेरे को WhatsApp पे हाँ है. खोलिए खोलिए. देखिए, मैं अगर ये बोलता नोटिस में ये होना चाहिए, टेक्निकल ग्राउंड होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, ऐसा पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, तो कोई फायदा नहीं होता. जब तक वो एक्चुअल नोटिस और उसके जो रिप्लाई हमने बना के आपको दिए हैं, वो जब तक एक्चुअली में आपको दिखलाया न जाए, नहीं तो पोलाइटनेस की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए ये कौन बताएगा आपको? टेक्निकल ग्राउंड क्या होता है वो कौन बताएगा आपको? वो तो एक्चुअल एग्जांपल्स देखेंगे तभी पता लगेगा आपको. सर ये तो हम लोग क्या DRC 1 करते हैं, DRC भाई 1 01 ए. आया, हाँ जी. ठीक है. अब आप चेक कीजिए, ये DRC 01 एज पर द फॉर्मेट था, किसने साइन किया था DRC 01 और डिमांड कितने की थी? सर अवाटो ने किया था साइन, और डिमांड किसने थी किया था? लगभग. सर सेल टैक्स ऑफिसर क्लास 2 अवाटो. अच्छा STO ने, अच्छा क्या बोल रहे हैं, बेटो? एवैटो अवाटो. असिस्टेंट वैट ऑफिसर. अच्छा, असिस्टेंट वैट ऑफिसर ने साइन किया. डिमांड कितने रुपए की थी? 2.5 करोड़ की. 2.5 करोड़ की थी. तो और ये दिल्ली में है? हाँ जी सर. कभी चेक किया वेदर दैट ऑफिसर इज ऑथराइज्ड टू इश्यू DRC 01A? नहीं सर, हमने तो चेक नहीं किया. कभी आपने चेक नहीं किया? ओके ओके ओके. 2.5 करोड़ का डिमांड अगर इश्यू हो रहा है, वो डिप्यूटी भी नहीं कर रहा, असिस्टेंट कर रहा है ना. आपने इसका जवाब दिया फिर? एक्चुअली में ये हमारे पास में आया था किसी के थ्रू, तो उन्होंने मतलब उनके पैनल पे जो कंपनी है उनके पैनल पे खुद के पास भी एक आधा कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने ऑलरेडी रिप्लाई फाइल कर दिया था, तो वो हमारे ठीक पास है. एडवाइस के लिए आया था. ग्राउंड क्या था? मेरिट ग्राउंड, टेक्निकल ग्राउंड चेक किया या और नहीं यही किया? था टेक्निकली कि इसमें बेसिकली ये था, जुलाई से लेके मार्च 2018 तक जो है ना,
उनका क्रेडिट मैच नहीं कर रहा था। भव्य अग्रवाल जी, मैं अभी आज देखिए, अभी मुझे टेक्निकल में आते हैं हम लोग कि whether that officer is authorized to issue that notice or not, whether that has been checked or not, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो चेक कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूं, रुकिए। ये एक हमारा चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेशन, टेरिटोरियल फंक्शनल जुरिसडिक्शन, इसी में आपको मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखलाता हूं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, छोड़ दीजिए। कमिश्नर मीन्स कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 एंड दिस। प्रॉपर ऑफिसर का डेफिनेशन देखेंगे। प्रॉपर ऑफिसर रिलेशन टू एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म अंडर दिस एक्ट मीन्स कमिश्नर। पूरे जीएसटी एक्ट का जो प्रॉपर ऑफिसर कौन है? कमिश्नर है। फिर कमिश्नर क्या करता है? डेलीगेट करना शुरू करता है। और द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल टैक्स हु इज असाइन्ड दैट फंक्शन बाय द कमिश्नर इन द बोर्ड। तो बोर्ड का कमिश्नर अलग होगा, वो अपने जूनियर ऑफिसर को ये फंक्शनल जुरिसडिक्शन असाइन करने लगेगा। ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट, अब देखिए सेंट्रल जीएसटी में अलग तरह के ऑफिसर्स हैं, यूपी जीएसटी एक्ट में अलग तरह के हैं। हम लोग अब आपके साथ आते हैं। अच्छा, जीएसटी में सेंट्रल जुरिसडिक्शन में 73 का नोटिस इश्यू करने का पावर किसके पास है? ये देखिए 3-1-1-2017 ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल है। रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन लेवाई, कौन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर सकता है? तो सुपरिटेंडेंट ये सब कैंसिल कर सकता है, ये सब लिखा हुआ 3-3-2017 में बाकी लिखा हुआ है। हमें आपसे जो पूछना चाह रहा था बताइए, 73 का नोटिस क्या सुपरिटेंडेंट इशू कर सकता है? यस। और अगर लोअर अथॉरिटी इशू कर सकती है तो हायर अथॉरिटी ऑटोमेटिकली इशू कर सकती है, ये जनरल रूल है। लेकिन मैं आपको जो चीज दिखलाना चाह रहा हूं वो देखिए, ये चीज आपने देखी हुई है। ये चीज सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स अगर सी और एस का डिमांड निकालता है तो उसके पास पावर सिर्फ 20 लाख रुपए तक का है, और डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स से 2 करोड़ का डिमांड निकाल सकता है। और आपने भव्य अग्रवाल जी ने आपने जो नोटिस दिखलाया है वो कितने रुपए का है? 2.5 करोड़ का है। ठीक बात है? हाँ जी। हेलो। इसमें सर ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने 73 दिया था, और इसमें जहाँ सिग्नेचर है ना वहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर ऑफिसर, और फिर नीचे सिग्नेचर की जगह पे खाली छूटा हुआ है और नाम लिखा हुआ है और डेजिग्नेशन। ये सब टेक्निकल ग्राउंड है। अब हम लोग आपको दिखलाते हैं, एक हमारी वेबसाइट है masterlearning.com। ये तो हमने सेंट्रल जुरिसडिक्शन का आपको बताया 73-74 का पावर कैसे डिवाइड किया हुआ है, बट वी डू नॉट नो ऑफ द दिल्ली लॉ। तो दिल्ली वालों ने अलग, जैसे देखिए सेंटर ने जैसे एक नोटिफिकेशन इशू किया ना, ये आप देखेंगे तो ये जो इन्होंने इशू किया है वो प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 73-74, ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू किया था 31 मई 2018 को। वैसे दिल्ली वालों ने एक स्पेशल सर्कुलर इशू किया, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर आर नॉट इशूड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। पूरे जीएसटी में सिर्फ सर्कुलर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच आर नॉट इशूड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, बट इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर कैन इशू ऑन इट्स ओन एनी काइंड ऑफ सर्कुलर्स। जैसे महाराष्ट्र ने एक सर्कुलर इशू कर दिया कि हम मैचिंग नहीं भी होगा तो भी हम क्रेडिट अलाउ करेंगे, बाकी स्टेट ने नहीं इशू किया, सेंटर ने अब इशू किया है। तो जिस तरह से अब दिल्ली ने कौन सा सर्कुलर इशू किया होगा वी डोंट नो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि दिल्ली ने 73-74 के लिए कौन सा सर्कुलर इशू किया है। समझ में आ रहा है आपको? दिल्ली जीएसटी प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है? 73। अब आपको ढूंढना पड़ेगा, ये तो सीबीआईसी आ गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें सब सीबीआईसी मिल रहा है, ये रहा दिल्ली। इसमें नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली यू हैव टू सर्च।
GST proper officer under issued circular issued by Delhi गवर्नमेंट। कुछ आया, फिर CBIC आ गया, ये FAQ आ गया, EduChat, ये इंटेलिजेंस आ गया। तो दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाना होगा, दिल्ली GST वेबसाइट। ये रहा सर्कुलर। और यही चक्कर है, कई सारे स्टेट्स का प्रॉब्लम यही है कि मिलता ही नहीं है। तो हमने तो कोशिश यही किया, अपने जो वेबसाइट है मास्टर लर्निंग्स में, ये इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, स्टेट लॉस का GST लॉ, तो अगर आप हमें भेजते हैं जैसे आंध्र प्रदेश का GST एक्ट रूल्स, अरुणाचल प्रदेश का एक्ट रूल्स, उसी तरह से दिल्ली का, कहाँ गया दिल्ली, ये दिल्ली GST एक्ट, जो जो हमें मिला वो हमने डाल दिया। ठीक है, चलिए आइए। और कौन सा नोटिस डिस्कस करें आपके साथ? एक ADT का नोटिस में डिस्कस करना चाह रहा था, एक सिंपल ऑडिट का नोटिस। अगर आपने देखा होगा, किसने साइन, कौन साइन करता है ADT का नोटिस, ऑडिट का नोटिस? ये तो DRC 01 है। ये भी DRC 01 है। ये रहा ऑडिट नोटिस, ये देखिए ऑडिट नोटिस। इंटीमेशन फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट, पढ़ लीजिए। Whereas it has been decided to undertaken audit of your books of accounts and records in accordance with the provisions of section 65, read with erstwhile this, enter that this superintendent, inspector, contact number, email ID. It is requested that the following documents for the period of last 5 years or from the period after the last audit undertaken by this department may be furnished immediate to the office. Record registered this इतना कुछ मांग रहा है। You are hereby directed to attend in person through authorized representative in case of failure वगैरह वगैरह वगैरह। साइंड भी है, सब कुछ है, सुपरिटेंडेंट ने साइन किया है। बताइए इसके बारे में क्या करेंगे? प्लीज बताइए। आप जो चीज ऊपर नीचे देखना चाहें मैं दिखला देता हूं, लेकिन जवाब आप ही को देना पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं तभी हमारी गाड़ी चलती है, मैं बोल पाता हूं। आपको ना टेक्निकल ग्राउंड, क्वेश्चन द नोटिस प्रॉपर है, यस और नो? अरे बता दीजिए। लग तो ठीक ही रहा है। लग ठीक रहा है, किस एंगल से? अब देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी नोटिस आए आप आंख बंद करके, आपने चाहे GST एक्ट आपको कितना ही अच्छा आता हो, हम लोग तो ये करते हैं, जब जैसे ही कोई नोटिस आता है हम लोग सीधे उठा के सेक्शन रूल्स, उसके फॉर्म्स उठा के पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, मैच करने लगते हैं। आप सेक्शन 65 एक बार देखते हैं, सेक्शन 65 एक्ट में। मैं अपना किताब नहीं दिखला रहा अभी, क्योंकि फिर पेज, अच्छा किताब में दिखलाता हूँ। सेक्शन 65 कौन सा पेज है? ये सेक्शन 65 में 224 है, और सेक्शन 65 किस सेक्शन पेज नंबर है? पेज 34 में है। ये रहा सेक्शन 65। देखिए, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, हु इज ऑथराइज्ड टू कंडक्ट ऑडिट। अब पढ़िएगा, द कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम नॉट बिलो द रैंक ऑफ ACDC। अब मुझे एक बात बताइए, सुपरिटेंडेंट
तो सुपरिटेंडेंट साइन नहीं कर सकता, तो उसने साइन किसने कर दिया? गलत, रॉन्ग ऑफिसर, रॉन्ग ऑफिसर। अब मुझे ये एसीडीसी, हाँ एसीडीसी साइन कर सकता है, ये कहां लिखा हुआ है? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है वहां लिखा हुआ 3/3/2017 सेक्शन 65 का जो ऑडिट का जो रूल है वो रूल 101 है। ठीक बात है। अब मैं क्या करता हूं, पेज नंबर 5 में आता हूं अंदाजा से, क्योंकि मुझे वो नहीं पता 3/3/2017 कहां मिलेगा। फंक्शनल जुरिसडिक्शन 1/1/2017 ये रजिस्ट्रेशन का, ये 3/3/2017। मुझे ढूंढना है रूल 101 या सेक्शन 65। एडिशनल जॉइंट कमिश्नर में नहीं लिखा हुआ, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर में देखिएगा रूल 101 मिल जाएगा मुझे। ये रहा, इश्यू टू कंडक्ट ऑडिट इन एडीटी 01। कौन? डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर। पूरे इंडिया में सुपरिटेंडेंट साइन करके एडीटी 01 भेजता है, एडीटी 02 भेजता है, लेकिन साइन करना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर को। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे एडीटी 01 मैंने पूरा देखा है कि जैसे ही नोटिस आता है क्लाइंट आपके पास आता है और आप क्या करते हैं, क्लाइंट को चलो चलो बनाओ इसके अकॉर्डिंग जो जो मांग रहा है लेके चलते हैं। वी नेवर थिंक कि वेदर द करेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर हैव साइंड, वेदर ही हैज साइंड और नॉट, वेदर द सर्विस ऑफ नोटिस शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली और नॉट। जैसे डीआरसी 01 हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली आना चाहिए, पोर्टल में आना चाहिए। सेक्शन ऑडिट का नोटिस एडीटी 01 आपका मेल में भी आ सकता है, स्पीड पोस्ट से भी आ सकता है, पोर्टल में भी आ सकता है। लेकिन कुछ नोटिस रूल 26 में रजिस्ट्रेशन के जितने भी नोटिस हैं वो सारे के सारे पोर्टल में आने चाहिए। खैर, तो एक बात तो पता लग गई, कौन सा पेज में थे हम लोग, 224 में थे ना, ये वाला ऑडिट नोटिस, इसमें गलत साइन किया। अब मैं अगर फॉर्म निकालता हूं एडीटी 01 का, आप देखिए फॉर्म का फॉर्मेट क्या था। फॉर्म एडीटी 01, ये रहा फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, आई प्रपोज टू कंडक्ट ऑडिट दिस फाइनेंशियल ईयर दिस टू दिस, एक टाइम लिखा हुआ है कि इस फाइनेंशियल से इस फाइनेंशियल ईयर। और इस नोटिस में देखेंगे तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि भैया लास्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बताना पड़ेगा कौन से फाइनेंशियल ईयर से बीच में हुआ। और यहां पर टाइम दिया जाता है 15 वर्किंग डेज। यहां देखिए एज रिक्वायर्ड विद इन 15 डेज लिखा हुआ है। अब एक्ट देखिएगा तो उसमें 15 वर्किंग डेज लिखा हुआ है। ये देखिए 15 वर्किंग डेज लिखा हुआ है। तो हमने देखा, आता हूं मैं आपको, हमने जवाब क्या दिया। पहला ऑब्जर्वेशन, दिस नोटिस इज नॉट सर्व इन प्रॉपर फॉर्मेट एज रिक्वायर्ड इन एडीटी 01। दिस नोटिस शैल बी रिप्लाइड ऑन दिस टेक्निकल ग्राउंड। ऑप्शन 2, a taxpayer may choose to raise these technical grounds after receipt of DRC 01। अब हमने देखिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, आप कुछ लोग कह रहे थे कि जवाब ही नहीं दे। अब क्या करें बताइए, इसको टेक्निकल ग्राउंड पे यहीं क्वैश करवा देंगे तो क्या होगा, वो दोबारा एडीटी 01 करेक्टेड इशू कर देगा, यस और नो। लेकिन अगर क्लाइंट को ये कि कॉपरेट करो, जितना ऑडिट में जो मांगता लेके जाओ, जो करना करो, एडीटी 02 में ऑडिट ऑब्जर्वेशन भी आने दो, फिर जब डीआरसी 01 इशू कर देगा तब हम लोग बोलेंगे कि भैया एडीटी 01 ही गलत इशू किया था। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? उसका पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगा, यस और नो। वो अगर खत्म नहीं करेगा तो अपील में खत्म होगा। ठीक बात है? यस सर। तो ये आपको सोचना होगा, ये स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है आपको। A taxpayer may choose to raise these technical grounds after receipt of DRC 01 and try to get DRC 01 quashed on these technical grounds. If ADT 01 is not proper, then all or any action taken on the basis of ADT 01 is liable to be quashed. The taxpayer need to understand which strategy to opt. अब फिर हमने क्लाइंट से बात किया, क्लाइंट ने कहा भैया डिले करवाओ, ऑडिट तो करवाना ही है। तो हमने ठीक है, तो हमने इसको ये लिख दिया। अब देखिए ये कुछ भी नहीं मांग सकता।
जो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग है वही देंगे। वो अगर ये कहेगा कि हमें ये रिकंसिलेशन बना के लो, वो हम लोग का काम नहीं है, वो रिकंसिलेशन वो खुद बनाएगा। आपके पास ADT 01 का नोटिस आता है एनेक्सर के साथ, बोला सर ये भी भर दो, ये भी भर दो। जीएसटी ऑडिट मैनुअल पढ़ लीजिएगा, उसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको दिखलाता हूँ ऑडिट मैनुअल में। ये जो हमारी जो वेबसाइट है इसको आप यूज कीजिए, इसमें सब कुछ हमने डाला हुआ है जो आप अगर रिप्लाई के लिए जो भी आपके काम का आएगा। तो ये प्रोसीजर में जाइए, जितने भी जीएसटी प्रोसीजर स्टेट ने और सेंटर ने इशू किए हैं, चाहे प्री जीएसटी रिजीम को हो या इस जीएसटी रिजीम को हो, वो हमने सारे डाले हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सर्च एंड सीजर का मैनुअल जीएसटी रिजीम में तो आया नहीं, तो हमने पुराना ही डाल दिया। शोकॉज नोटिस एडजुडिकेशन रिकवरी जीएसटी रिजीम में आया नहीं, तो पुराना ही डाल दिया। जीएसटी ऑडिट मैनुअल ये देखिए सेंटर ने जो इशू किया, इसको आप खोलिए, इसमें मैं एक एनेक्सर दिखलाता हूँ। ये एनेक्सर मैंने कई नोटिस में देखा ADT 01 के नोटिस में, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एनेक्सर कौन भरेगा, ऑफिसर भरेगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ये एनेक्सर वो हमें दे देते हैं, बोले सर इसको भी भर के ले आइएगा। ये रहा, ये ऑफिसर को भरना चाहिए, हमसे भरवाता है वो। खैर, तो you are hereby directed to attend in reference that there are many shortcomings, infirmities or deficiency in the said intimation. However, we are quoting one major deficiency, which is that the said intimation is not in prescribed format as required under section 65. The said intimation issued by your good office is attached with for your kind perusal. तो इसमें हमने बहुत सारे ये लिख दिए कि आपने बहुत सारी गलतियां हैं और एक मेजर गलती बता दी। अब क्या होगा कि अगर वो दोबारा इशू करता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करता, लेकिन फिर से सुपरिटेंडेंट साइन करता, तो फिर उसको एक भेजेंगे कि भैया इसको तो सुपरिटेंडेंट को साइन ही नहीं कर सकता। तो आप डिले पे डिले करवा सकते हैं। प्रेयर सिग्नेचर ए प्रॉपर नोटिस वाज सर्व्ड इन ADT 01। बस, तो 20 नोटिसेस है। ऑब्वियसली टाइम की कमी के कारण मैं पूरा नोटिस डिस्कस नहीं कर पाया, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑडिट के नोटिस हैं। एक ये बहुत अच्छा ऑडिट का नोटिस आया था, जिसमें इसने ऑफिसर ने ADT 01 भी इशू किया, फिर ADT 02 इशू किया, मतलब सॉरी ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, फिर रिवाइज ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, फिर कॉरेजेंडम इशू कर दिया 2-2। तो बहुत इसमें, और 51 लाख का टैक्स बना दिया। तो इस तरह का है, तो ये काफी अच्छा है। इसमें इस नोटिस को डिस्कस करने में मुझे करीब 1.5 घंटे लगते हैं, और 1.5 घंटे तब और इंटरेक्टिव हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। डिमांड नोटिस ये है। तो भारद्वाज जी के परमिशन से मैं अगर बता दूं कि ये किताब अगर इंटरेस्टेड है कोई खरीदना चाहे जीएसटी लॉ और जीएसटी नोटिस के, तो मैं बता देता हूं। बता दूं सर? जी सर, यस सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये हमारी एक वेबसाइट है taxbykk.com। प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, taxbykk.com। आपका यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है? हाँ, यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। तो यूट्यूब चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी लेटेस्ट नोटिसेस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं जो अभी आए हैं, वो सब हमने डिस्कस किए हैं उसमें। और ऑब्वियसली हम जीएसटी कोर्स भी करवाते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। और हम एक लाइव कोर्स शुरू करने वाले हैं रिफंड और आईजीएसटी का। लेकिन मैं बुक्स बताता हूँ आपको। बुक्स हम लोग कैसे लिखते हैं? बुक्स हम लोग जब लाइव क्लास, पूरी बुक हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद लाइव क्लास में ये पूरा कोर्स के रूप में एक तरह का हमारा स्क्रिप्ट हो जाता है। फिर हम लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सारे पार्टिसिपेंट या तो चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई स्टूडेंट नहीं है। जब स्टूडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली वो थियोरेटिकल नहीं है, पूरा पूरा प्रैक्टिकल चल रहा होता है। तो जीएसटी लॉ की एक बुक है, एक जीएसटी नोटिसेस की बुक है। तो दोनों किताब, एक किताब का प्राइस 800 है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बुक रिलीज हो चुकी है। ये 442 पेज का है, यहाँ मैं ठीक करूंगा। ये सीजीएसटी एक्ट के सारे कंटेंट प्लस अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये दोनों बुक 700 + 700 1400 की हो जाएगी। तो ऐड दिस डील टू कार्ट और फिर आप खरीद पाएंगे इसको। जी जी। और इस जीएसटी नोटिसेस में जो भी डिटेल है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, कंटेंट। मैंने वैसे आपको दिखलाई दिया कंटेंट क्या है अंदर में। बहुत बढ़िया। So over to you Bhardwaj ji, and sir thank you so much for inviting me on all participants। की उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगली बार अगर मैं आऊं तो पार्टिसिपेट जरूर से कीजिएगा। सर थैंक यू सो मच। Thank you sir, thank you so much for your wonderful presentation. Yes sir।
बहुत अच्छा सेशन रहा. I request the members, if you have any query or any type of Yes, please. discussion, we are having just 10 minutes more. If you want to interact on any matter, so KK Agarwal ji is authority on the subject. You can discuss any of your queries relating to GST. There are 84 participants and most of them are working in GST. Therefore, I request members to kindly have some interactive session for 10 minutes more. सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका जो लाइव कोर्सेज आपने अभी बताया वो कब होंगे लाइव क्लासेस? वो रिकॉर्डेड है सर, रिकॉर्डेड है. और IGST और रिफंड की लाइव क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल से शुरू करेंगे. 1 अप्रैल से. और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो कैसे मिलेंगे सर? वो वेबसाइट में जाएंगे, फिर हम लोग है ना पेमेंट करने के बाद गूगल ड्राइव का लिंक देते हैं, वो तो कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ओके, राइट, थैंक यू. लाइव क्लासेस कहाँ पर होंगी सर? सर जूम में. इन विच सिटी? लाइव क्लास नहीं, जूम में होगी. मैं तो बोकारो में रहूंगा, जूम में रहूंगा. जूम तो कहीं भी कर सकते हैं. अच्छा, जूम पे जूम पे तो एनीवन कैन ज्वाइन. लेकिन वो लाइव क्लासेस के साथ टाइमिंग्स क्या रहते होंगे फिर? वो तो कहीं ना कहीं क्लैश सर. हाँ, लाइव क्लासेस, हाँ नहीं, लाइव क्लासेस की टाइमिंग हम लोग बहुत अच्छी टाइमिंग रखी हुई है. वो मॉर्निंग 6:30 होती है, 8:30, 6:30 to 8:30. तो वर्किंग क्लास के लिए सोच के रखा गया है. अभी हम लोग है ना जो लाइव कर रहे हैं वो फ्री में जिसको भी अटेंड करना कर सकते हैं. हम लोग GST काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स को हम लोग पढ़ते हैं. तो हमारा जो नंबर है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9999227384 जी. रिपीट सर. 9999 227381. फाइन सर. और सवाल? मेरी एक क्वेरी है. हाँ विपिन जी. सर आजकल नोटिसेस आ रहे हैं इंटरेस्ट को लेके और लेट फी को लेके 2017 से लेके अभी तक कि आपने लेट रिटर्न फाइल करी है और आपकी जो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बनती है इंटरेस्ट की और लेट फी की वो आपने पे नहीं करी है और वो हमें पे कर दी है, नहीं तो हम सेक्शन 79 के अंदर आपकी ऊपर प्रोसीडिंग्स ओपन कर देंगे. तो इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्होंने कोई कैलकुलेशन साथ में नहीं दी और लेट फी के लिए जो वो बात कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आज के टाइम में और पहले भी लेट फी तो हमेशा ऑटोमेटिक पेमेंट होती रही है, जिसके लिए हम ये जवाब दे सकते हैं कि दिस इज द ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड वी डोंट हैव एनी ऑफ द लायबिलिटी टुवर्ड्स द लेट फी. क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो अब लगना चालू हुआ है, पहले नहीं लगता था, रिटर्न में शो नहीं होता था और मैक्सिमम लोग पे भी नहीं करते थे जब तक कि हम एज अ कंसल्टेंट उनको पे नहीं, आप पे करिए, और इंटरेस्ट अमाउंट अगर ज्यादा है तो भी पेमेंट नहीं किया जाता था. उन्होंने कोई कंपटीशन हमें नहीं दी, तो क्या हम अपनी तरफ से कंप्यूट करके उनको बोले या वी आस्क फॉर कि भैया आप हमें कंपटीशन दीजिए इसकी? यस, उनको कहिए कंपटीशन करके दे, क्योंकि हमें जो लेट फीस के कंपटीशन मिले हैं वो बहुत गलत मिले. दे आर नॉट अप्लाइंग लेट फीस में जो एग्जाम्पशन हमें मिली थी वो अप्लाई नहीं करते. लेकिन फ्यूचर के लिए मैं आपको बता दूं, अभी वेट कीजिए, हो सकता है इस बजट में कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए. अच्छा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगा, लेट फीस का एमनेस्टी स्कीम शायद आ जाए. तो लेकिन लेट फी तो ऑलरेडी पे हो चुकी है, उसके अंदर पे हो चुका नहीं, अगर पे कर चुके हैं तब कोई फायदा नहीं मिलेगा. नहीं पे हुआ है देन वेट फॉर दैट एमनेस्टी स्कीम. नहीं सर, इसमें मेरा ये कहना है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस से ही लगता रहे हमेशा लेट फी, बिना लेट फी करे जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. बट वो आगे फाइल ही नहीं करते, लेट फी नहीं पे करते हम फ्री फी. आज के डेट में ना, लेकिन पिछले कैलकुलेशन वाले 17, 18, 18, 19 में तो वो मैनुअल कैलकुलेशन हो रहा है. सर मेरे को एक क्वेश्चन हाँ पूछना प्लीज. था आपसे. हाँ कमलेश जी पूछिए. आवाज नहीं साफ आ रही है कमलेश जी आपकी. कमलेश जी आवाज साफ नहीं आ रही है. कमलेश जी यू आर नॉट क्लियर, आपकी वॉइस इज नॉट क्लियर. आप शायद ट्रैवल कर रहे हैं कमलेश जी. और कोई सवाल पूछिए, कमलेश जी की आवाज साफ नहीं आ रही है.
सर मेरा एक क्वेश्चन है। आवाज ही साफ नहीं आ रही कमलेश जी। और कोई सवाल कीजिए। सर आपकी बुक है ये फिजिकली अवेलेबल होगी, डिलीवर्ड होगी कोरियर से या ऑनलाइन मिलेगी? कोरियर से होगी। ठीक सर। दिल्ली से ही कोरियर होती है ये किताब। हाँ भाविया जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एक हमारा क्लाइंट है जिसने कुछ गुड्स इंपोर्ट करे और उसके ऊपर जो ड्यूटी पे करी थी और आईजीएसटी पे किया था, उसका इनपुट लिया उसने। अच्छा। लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो नहीं हुई 180 डेज में। तो क्या 180 डेज का जो रिवर्सल रूल है वो इस पे अप्लाई? नहीं, इंपोर्ट किया और 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ, ये कैसे पॉसिबल हो गया? इंपोर्ट में तो विदाउट आप पेमेंट के 15 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है। सर हमारे क्लाइंट ने कुछ इंपोर्ट किया था और उसके ऊपर गुड्स इंपोर्ट करे थे और उसके ऊपर आईजीएसटी पे करके उसने वो क्लियर करा लिया और बाद में उसका आईजीएसटी का इनपुट ले लिया। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस उसकी पेमेंट रोक दी गई, नहीं करी। अब आफ्टर 180 डेज बाद नहीं भव्या जी, किसने रोक दी पेमेंट? हमारे क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी इंपोर्ट करने के बाद। मतलब वो आउटसाइड इंडिया पेमेंट नहीं हुई? हाँ, आउटसाइड इंडिया पेमेंट नहीं करी। मतलब कि अगर अच्छा नहीं उसमें 180 डेज मैं समझ गया। खैर आईजीएसटी की पेमेंट हो गई, बाकी वैल्यू की पेमेंट नहीं हुई है, ये तो बड़ा कम होता है। टैक्स तो पे कर दिया गवर्नमेंट को और उसका इनपुट ले लिया। हाँ नहीं, रिवर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। रिवर्स चार्ज में 180 डेज एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सर ये हम डिपार्टमेंट को कैसे बताएं? हमारे पास डिपार्टमेंट से ना लिखा हुआ है रूल, सेक्शन और रूल्स में लिखी हुई है ये बात। हाँ वो हमने भी पढ़ी थी कि वो आरसीएम पे नहीं एप्लीकेबल होता, लेकिन वो कहते हैं ये आरसीएम है ही नहीं आपका। और क्या है फिर? हमने उन्हें कहा कि डिपार्टमेंट एक्सप्लेन। ये अब डिपार्टमेंट अजीब सी बात करेंगे तो क्या करेंगे? आपको ना डिपार्टमेंट अगर कहता है ये आरसीएम नहीं है तो बोले लिख के दे दीजिए क्यों आरसीएम नहीं है। हर हालत में आरसीएम है। हाँ, क्योंकि जब सामने वाली पार्टी फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगा रही है तो हम लोग ही उसके ऊपर टैक्स पे करके खुद ही इनपुट ले रहे हैं, तो उसमें 180 डेज की कंडीशन होती ही नहीं है। रूल में लिखा हुआ है, एक्सेप्शन है उसके अंदर आरसीएम की। यस ऐसे केस में सर हमारे लिए क्या रेमेडी है? हमारे क्लाइंट के लिए हम क्या कह सकते हैं? नहीं आपके लिए रेमेडी लॉ आपके साथ है, आप लिख के दीजिए। इफ द डिपार्टमेंट सेज दैट कि नहीं आपको करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव दैट दिस टैक्स इज पेबल। इट इज नॉट अ केस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेट द डिपार्टमेंट प्रूव इट। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। और कोई? सर ये पेपल के थ्रू जो एक्सपोर्ट सर्विस की पेमेंट आती है वो वो उसको फॉरेन करेंसी में मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्या? फॉरेन करेंसी में आती है पेपाल की वो रुपीज में हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना? हाँ वो तो करेंगे रुपये में, लेकिन एचडीएफसी वाला किसी भी बैंक में करते हो तो फॉरेन करेंसी का सर्टिफिकेट भी देता है वो। अब मांगिए कितना रुपीस आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं ऐसे करके मैसेज आता है ना सर। नहीं तो पेपर सर्टिफिकेट बैंक आपको फॉरेन करेंसी का हाँ बिल्कुल देगा। पेपाल तो बैंक नहीं है ना? नहीं पेपाल नहीं, पेपाल के थ्रू आया आपके डायरेक्ट बैंक में नहीं आता होगा। बैंक में पेपाल बैंक को देता, जैसे मैं आपको यूट्यूब का बताया, यूट्यूब एचडीएफसी बैंक को देता है, फिर एचडीएफसी उस डॉलर जो रिसीव करता है उसको कन्वर्ट करता है। वैसे ही पेपाल आपके क्लाइंट के बैंक को देगा, फिर वो क्लाइंट का बैंक उसको कन्वर्ट करेगा, तो आपका क्लाइंट का बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा। क्लाइंट तो सर फॉरेन कंट्री में है। ओके ठीक है। और कोई सवाल?
Any other questions from the members, please? It was a wonderful session. We are highly thankful to CSKK Agarwal ji for this wonderful deliberation on discussion on notices and issued by GST department, especially the technical grounds. Without going on the merits, you can challenge many notices. I liked it, and our members are highly benefited by this, sir. We are highly thankful to you for sparing your valuable time for guiding our members. I am also thankful to all the participants for making this program a great success. Thank you, all of you. With the permission of all, I would like to end the seminar. Thanks again, all of you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for having me, and I thank you all for listening to me so patiently. It was very nice to be here. Thank you. Okay, sir.